मेरे 21 इंटरव्यूज लगातार फेल हुए। तो मेरे घर पे ऐसा था कि शादी करवानी है। एक दिन वॉलमार्ट से आया इंटरव्यू, तो इंटरव्यू देना स्टार्ट किए और वो एक करते क्रैक होते गए। आई वॉज वर्किंग एट 11K पर मंथ। एंड आई एम फ्रॉम बस्ती उत्तर प्रदेश, जहाँ पे लोग कोडिंग के सी भी नहीं जानते हैं। तो मैं भी नाम सीनियर इंजीनियर के साथ बैठा था। ही हैड अराउंड 12 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो मैं कहा सर आपकी सैलरी कितनी है? ही सेड 50K। मैं कहा भाई साहब 10 साल लग जाएंगे, 50 साल का मान लेते हैं। तो मैंने नुपुल को बोला, मैं कहा ये तो सिस्टम काम नहीं करेगा, मॉडल ही काम नहीं करने वाला। एक बच्चा था जो बाहर सुन रहा था, उसने कहा आप हम लोग पे ट्रस्ट रखिए, हम लोग ये मेक श्योर करके बताएंगे कि ये मॉडल काम करेगा। व्हाट डू यू थिंक, लाइक इन नेक्स्ट 5 years people those who are coming out as software engineer from colleges, what do they need to basically do right now? अभी तो जो ये कर रहा है उसके साथ साथ ही करना है। Now coding has become like 10-15% of the time. तो आप उससे एक स्टेप आगे रहना है कि अब क्या कर सकते हैं, ए से आप क्या करवा सकते One job that I am seeing coming is product engineering. कि शुरू से एंड तक एक प्रोडक्ट को पूरा बनाना। Developers say expectation from being understanding of a bit of design, understanding a bit of product management, understanding a bit of programming, understanding a bit of QA is something which is now a new job role which people are actually looking for. Masai gave me the biggest lesson of life, that if you know everything in the room, you're in the wrong room. Move out of your comfort zone whenever you get chance. This was a aha moment for me, and that's how. Hi everyone. 7 years ago, Masai started with a simple belief that talent is everywhere, but opportunity is not. Now we are entering into our 8th year. Today I am very fortunate to be sitting alongside 7 of our alumni, those who have shown faith in Masai's mission. These people have enrolled into our programs, took a bet on themselves, have gone through that rough, hard path, and then eventually became successful and now working in industries with an amazing careers. This is not a success story podcast. This podcast is going to be about dreams, faith, also mistakes, doubts, and resilience that you don't usually see behind LinkedIn post, the success post that you see on LinkedIn every day. So this is their story, and let's get this started. Yeah, so thank you guys for joining us today. So पहले थोड़ा सा 5 मिनट ना इंट्रो कर लेते हैं ताकि सब लोगों को पता पड़ जाए। तो एक एक करके सब लोग बताएंगे। अरुण आप से स्टार्ट करते हैं। Okay, so my name is Arnav. Being in Masai, belong to the second batch, which was Spartans. Started in 5th of August 2019, and I got placed on January 2020. Since then, I'm working as a senior software engineer. Started as software and then to senior software engineer. I'm working with a company called The Quint right now. थोड़ा सा पहले का भी बताओ, कहाँ से आए थे? Okay, so मैं actually belong करता हूँ एक defense background से. My dad was in Air Force. So I born in Rajasthan, moved to Srinagar, Tejpur, Gwalior, a lot of places. So I completed my school from 6 different states. And then I chose engineering to go for something I has to do. Everyone was doing engineering, तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ. And I opted for civil. Reason कुछ नहीं है, just because nobody else took in my class. I thought let's try it out. Like most of the people were going to mechanical or electrical. अब कुछ बच्चे थे ITCS के, I chose civil क्योंकि कोई नहीं लिया था. कितने लोग थे बैच में? 60. 60. हाँ. So मेरी पूरी स्कूलिंग केवी से हुई है. बिकॉज वो सिविल बैकग्राउंड वो एक केवी से होते हैं, नहीं तो एयरपोर्ट स्कूल से होते हैं. फ्रॉम केवी. तो सिविल से किया. सिविल में देन आई वर्कड इन 3 डिफरेंट कंपनीज. गाजियाबाद में जॉब की, रेणुकूट में जॉब की. लास्ट जॉब मैंने कोरबा, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड कोरबा, छत्तीसगढ़, वहाँ से की. बट इट डिड नॉट वर्क आउट. पढ़ने बहुत मज़ा आया. सिविल इज़ एक्सीलेंट ब्रांच टू रीड. मतलब इतना कुछ है उसमें सीखने के लिए. बट व्हेन यू एंड अप विद अ जॉब तो काफ़ी मोनोटोनस जॉब है जो मुझे लगी. तो ये जॉब लगी थी कैंपस से? ना कैंपस से नहीं, थ्रू सम रेफरेंस. भैया या कोई काम कर रहे हैं तो उन्होंने लगवा दी. तो पहले आई वॉज वर्किंग एज अ जूनियर साइट इंजीनियर RMC प्लांट, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट. अगर आपने देखा वो ट्रक जो हमेशा उसके पीछे का घूमते रहता है, दैट इज सम कॉन्क्रीट मिक्स जो ग्रेड्स के बनते हैं. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस सप्लाई होते हैं. तो वो जहाँ बनते हैं आई वॉज ओवर देयर. वो गाजियाबाद में बॉर्डर पे उनका प्लांट था. देन आई मूव टू रेणुकूट. रेणुकूट में एक डैम बन रहा था. तो डैम से छोटा एक होता है स्पिलवे, दैट मैं उसमें था कुछ मंथ्स. देन आई मूव टू एन इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी जहाँ पे एक पूरा नवोदय काइंड ऑफ कैंपस बन रहा था. तो उनका बॉयज़ हॉस्टल और बॉयज़ मेस, ये 2 बिल्डिंग मेरे अंदर में थी.
तो मैंने वहाँ पे अराउंड 1.5 years सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सिविल में मैंने वही किया. Then it did not work out. तो सिविल से फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो काफी इंटरेस्टिंग है. हाँ, तो सिविल मैंने पहले ड्रॉप कर दी कि वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ में क्या हुआ था, एक दिन आई वाज सिटिंग विद माय सीनियर साइट इंजीनियर, ऐसी कुछ बात हो रही थी वहाँ पे मेरी. अब मैं इन टर्म्स ऑफ मनी आई वाज वर्किंग एट 11K पर मंथ. मेरा पीएफ कट के 10,700 समथिंग आता था. तो मैं एक दिन अपने सीनियर इंजीनियर के साथ बैठा था. ही हैड अराउंड 12 years का एक्सपीरियंस. ही वर्कड इन कुवैत, दुबई, देन ही केम टू इंडिया. काफ़ी एक्सपीरियंस था. तो मैं कहा सर आपकी सैलरी कितनी है? ये सर 50K. मैं कहा भाई साहब 10 साल लग जाएंगे, 50 साल कमा लो. मैं तो मेरे माइंड में जो थॉट आया उस दिन से कि आप 10 साल लग जाएंगे 50,000 कमाने में, हाँ तब तक तो मेरे को भाग कर है. तो फिर मैंने वो छोड़ दिया. देन आई थॉट लेट्स डू MBA. तो मैंने छोड़ दिया. मैं MBA का मेरा तो पहले मैंने छोड़ दिया. देन आई स्टार्टेड प्लानिंग कि नेक्स्ट व्हाट टू डू, व्हाट आर द अदर्स ऑप्शन आई हैव. तो सिविल में देयर इज अ स्पेशलाइजेशन कॉल्ड एनमार्क, जिसके कुछ कॉलेजेस हैं. जैसे इफ यू कंसीडर इन IT यू हैव CDAC, IIIT बैंगलोर. वैसे देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एनमार्क. एनमार्क क्या करता है? एनमार्क विल ट्रेन यू फॉर अ site product manager or something, which handles all the architecture, interior, everything. But the fees was around 25-26 lakhs. So that ended up कि भाई ये नहीं हो पाएगा. Then I thought for MBA. MBA maybe if you get scholarship then only you'll be end up paying the fees, else तो बहुत महंगा है. Somehow here there failures, try. Last I came to Bangalore because my sister was here and she was working as a senior UX/UI designer since long back. So she asked me to move to Bangalore and try software engineering. Why? Because I was very good at maths. She said, you think very logically, it could help. Just try it out. वैसे भी तो कुछ कर नहीं रहे हो. Then I तो तुमने जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद फिर एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया. अच्छा. So then मैंने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, met a lot of people, my college seniors, my colleagues कि वो अभी क्या देना. lot of people were preparing for government exams. कोई IBPS प्रिपेयर कर रहा है, कोई UPSC प्रिपेयर कर रहा है. But I did not had time. One reason because I graduated in 2016 and my dad was going to retire in 2019. मेरी ये सिविल से जब मैं ड्रॉप हुआ तो 2017 एंड ऑलरेडी हो चुका था, considering all 3 jobs. तो for me settling down I did not have time more than 2 years. Max 2 years I could have given to myself. तो मैं बहुत शॉर्ट टर्म सक्सेस ढूंढ रहा था कि किस में मिल जाए. तो I did not had any plan. Whatever if some senior was saying if you try this you'll make money. I used to start that area. तो मेरा पर्सनल कोई ज़ील नहीं था. Then I बस पैसा कमाना था. बस हाँ I wanted या to सेटल होना था. सेटल होना था कि कहीं जहाँ कोई बोले कि तुम्हें 10 साल नहीं लगेगा. एक स्टेबल इनकम में और एक स्टेबल करियर में. करियर वाइज. ओके. So that's how by destiny I ended up in Bangalore. कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्राई करते हैं. सही है. हाँ. Nice. So I moved to Bangalore in 2017 end or 18 starting somewhere. अच्छा. And then you joined Masai in 2019 mid. So 1.5 years I spent in Bangalore also, trying a lot of boot camps. It paid very badly. I used to stay in Murugesh Palia and used to travel to Vijayanagar. Murugesh Palia is like quota of software engineers, ना? हाँ, but I used to go to Vijayanagar. अच्छा. हाँ, क्योंकि वहाँ मेरे को एक थोड़ा सस्ता boot camp मिला था. Not that cheap, but सस्ता था. अच्छा. तो वो भी वर्कआउट नहीं हुआ. Then in 2019 I joined Masai. Got it. ठीक है. चलो let's start with Mayuri. Sure. So I am Mayuri Samanta. तो मैं बंगाली हूँ, but I born and brought up in Gujarat. I have done after 10th I have chose commerce. Not a specific reason. It just मुझे science नहीं लेना था. It's too tough and all of those things. And arts was not there so much. तो फिर I'm like okay let's take commerce. And commerce लेने के बाद I scored well, like 80-85%. I'm like okay really good. And Have you prepared for CA? yes yeah that's the next step कि हाँ अच्छा है. Then one of my teacher told कि CA कर लो अच्छा रहेगा and all of that. So I'm like okay let's join. तो I took parallelly BCom and CA parallelly चल रहा था. But then I have given foundation, it cleared up in one go. But then intermediate में थोड़े issues आए कि नहीं हो रहा है. And then COVID भी आ गया. तो फिर या इट वाज अप एंड डाउन हो रहा था. तो फिर घर वालों ने बोला कि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे, ट्राई समथिंग एल्स. तो माई फादर केम एंड टोल्ड कि ट्राई फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. तो फिर आई स्टार्टेड गोइंग टू ट्यूशन अबाउट
बैंकिंग एग्ज़ाम GPSC वगैरह ट्राई कर रही थी, बट आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड कि नहीं ये तो नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट टू डू. But क्यों गवर्नमेंट एग्जाम्स में तो आई थिंक lakhs of people actually give government exam. या दैट्स द थिंग, लैक्स ऑफ पीपल गिव एंड द सिलेक्शन Selection बहुत rate is वेरी लो. या तो मुझे भी वही चाहिए था कि शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत जल्दी, मेरे पहले से ऐसा था कि आई वांट टू अर्न, ऐसा था मेरे अंदर कि आई विल फुलफिल ऑल माय जो भी लेना है खरीदना है, आई विल अर्न एंड देन ओनली आई विल purchase. परचेज. तो फिर इन दैट मोटिव कि हाँ मुझे कमाना तो है, तो फिर देन आई स्टार्टेड, मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया. मैंने आई डिड मैनी थिंग्स एक्चुअली बीच में कोविड टाइम के कोविड टाइम के अंदर. या एंड देन व्हेन मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, देन वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज ऑलरेडी स्टडीइंग इन मसाई, he suggested me कि you can start Masai, you don't have to give money upfront, you can pay after placement and all of that, and that thing hit me कि हाँ मतलब पैसे नहीं देने पहले I can learn. तो फिर I told my mom and dad कि हाँ मुझे ये करना है. They are like, तो you tried so many things, CA and then banking and then you are coming into here. I'm like, बट ये क्वेश्चन नहीं करा कि कॉमर्स बहुत ही अनटिपिकल बैकग्राउंड है ना, कि कॉमर्स में फिर सीए के अंदर गए, तो गवर्नमेंट एग्जाम वो तो फिर भी लिंक हो जाता है कहीं ना कहीं से. okay. उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल ही डिफरेंट डोमेन है, तो किसी ने बोला नहीं कि ये इसके लिए तो लोग बाग बीटेक करने जाते हैं? या मतलब मेरे आसपास कोई था नहीं जो इतना इंजीनियरिंग मतलब ये सब कर रहा था. आई वॉज कॉमर्स कर रहे थे, साइंस ले रहे थे, काइंड ऑफ दैट. कोडिंग वाले उतने कोई थे नहीं, तो आई हैड ज़ीरो रेफरेंस ऑन दैट. तो फिर जो भी हुआ, वो जो फ्रेंड था उसी ने मेरे को कहा कि ये है, सी इन लिंक्डइन हाउ मच पीपल आर गेटिंग रिस्पॉन्स व्हेन दे आर आस्किंग फॉर ओपन फॉर जॉब एंड ऑल ऑफ दैट. तो ही शोड मी एवरीथिंग. आई एम लाइक ओके लेट्स गिव अ ट्राई. वैसे भी कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, तो आई एम लाइक लेट्स गिव अ ट्राई. तो या Well, it's so brave, no? कोविड के टाइम पे मुझे आई रिमेम्बर कि people used to just play Ludo most of the time and wasting time, but finding out new career is something which is very, very, very interesting. यस. तो मेरे घर पे ऐसा था कि वो शादी वाला चीज़, कि शादी करवानी है. अच्छा. इट वॉज लाइक दैट. अभी भी है, तब भी था. आई डोंट नो हाउ व्हेन. ठीक है. तो उनको वो चीज़ है. आई एम लाइक नहीं, मेरे को कमाना है, देन ओनली आई विल थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. दिस इज़ माई प्रायोरिटी, आई वॉन्ट टू डू. तो वो अर्जेंसी वहाँ से आई कि हाँ मुझे कुछ करना तो है. इट कैन बी एनीथिंग. एंड टिल स्कूल मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे, जिसमें पढ़ना कम पड़ता था. एंड आई यूज़ टू रिमेंबर कि ऐसे करना है, देन आई यूज़ टू राइट. आई डोंट लाइक थियोरिटिकल सब्जेक्ट जिसमें आई हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड देन राइट. तो फिर इन दैट वे वो फ्रेंड ने भी इसने सजेस्ट किया कि या प्रैक्टिकल वे में यू आर गुड, सो यू कैन ट्राई दिस, ऐसे करके. Then I joined Masai and it was like Which year you have joined Masai? 2022. 2022. Yeah. Okay. Web Nice. 19. तो I joined and it was turning point of my life. मुझे DSA करने में बहुत अच्छा लगता है. I was in the Java batch. उसके बाद मैंने Java लिया and yeah, it has changed drastically. Then I worked for 2 years in Surat and right now I'm working in Fallenco as a software engineer. Nice. Chavi. My name is Chavi and I am from बस्ती उत्तर प्रदेश, अरे जहाँ पे लोग कोडिंग के सी भी नहीं जानते हैं. तो जब मैं क्लास 8 में थी, तो जब मेरा पहला स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट ओपन करने के लिए पापा लेके गए थे, तो मैंने वहाँ पे एक मैनेजर देखी थी जिनके पास अथॉरिटी थी कि वो लोगों को कुछ बोल पा रही थी कि अभी तुम लाइन में मत आओ, तुम पीछे जाओ, तुम यहाँ जाओ. तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं ये बनूंगी, मैं बैंक मैनेजर बनूंगी. वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और स्टेज है उनको दूंगी. मतलब मेरे पास एक अथॉरिटी होगी. आई वाज नॉट लाइक कि मुझे पैसा चाहिए, बस मेरे को अथॉरिटी चाहिए थी कि मेरे सामने कुछ लोग हों जिनके जो मेरे अंडर में काम करें. तो फिर उस टाइम पे मैंने ये सोचा. फिर उस टाइम में मेरा मोटिव था कि मैं बैंक मैनेजर बनूंगी. उसके बाद 9th गया, 10th तक तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता नहीं. और हमारे यूपी बोर्ड में बहुत चीटिंग होती थी. तो यूपी बोर्ड से करा था? हाँ, 10th 12th में दोनों यूपी बोर्ड से किए. तो 10th तो ऐसे ही चला गया. वो टीचर बोर्ड पे लिखता था, हम कॉपी में लिखते थे, खत्म. एग्जाम हाँ, एग्जाम्स में भी ऐसा होता था क्योंकि तब वैसा होता था पहले. 16 में मैंने दिया तो था. 12th फेल मूवी के अंदर जो बताया गया वो तो सही है. एग्जाम सही था, वैसा ही वो बोर्ड पे लिखते थे, हम कॉपी में लिखते थे. और फिर 10th तक तो ऐसा निकल गया. फिर जब मैं 11th में आई
तो मेरी केमिस्ट्री की जब पहली क्लास स्टार्ट हुई उसमें मैंने एक ही दिन में 5 बार डंडे खाए, मतलब एक पूरे दिन में, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में, ऐसे करके। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई अब तो गई मैं, अब कुछ नहीं होगा। फिर मैंने घर पे आके अपने पापा को बोला कि मेरे को कोचिंग जाना है तो मेरी कोचिंग लगवा दो। मैं सुबह को 9 को स्कूल जाती थी और शाम को 7 बजे घर आती थी, वो भी साइकिल से, वो भी पुल वाले रास्ते से। और ये जब बस्ती हफ्ते- में ही करती थी? बस्ती में ही रहती थी। बस्ती में भी एक छोटा सा गांव है जहाँ मैं रहती थी। अच्छा। उसके बाद मेरा 12th कंप्लीट हुआ। फिर 12th के बाद मैंने सोचा था यहाँ पे बीकॉम में एडमिशन करवाऊंगी, खुद लखनऊ जाऊंगी और वहाँ पे बैंकिंग की तैयारी करूंगी, लाइफ सेटल हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, हो जाएगा। बैंकिंग मतलब ड्रीम? हाँ, ड्रीम था उस टाइम से ही, जब से मैंने वो दीदी को देखा था तब से। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि नहीं तुम पॉलिटेक्निक कर दो। अब पता नहीं, मतलब मेरे पापा ये मेरी लाइफ चेंजिंग का हर टाइम मोटिव रहे हैं, उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया। पर उस टाइम पे जब लोग अपने लड़कियों को सिलाई सिखाते थे तो मेरे पापा ने मेरे को कंप्यूटर सिखाया। अरे वाह, नाइस। तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि तुम पॉलिटेक्निक कर लो। फिर मेरे एक मतलब फैमिली कजिन मेंबर ने बोला कि पॉलिटेक्निक से कुछ नहीं होता। तो मैंने मतलब मेरा माइंडसेट में आ गया भाई कुछ नहीं होता, अभी पापा बोल रहे तो करना है, तो मैं चली गई पॉलिटेक्निक करने। और ये भी बस्ती में? हाँ, नहीं, ये कॉलेज मिला मेरे को अयोध्या में। अच्छा। तो मुझे एक पॉइंट मिल गया, मैं तो घर से बाहर निकल जाऊंगी, अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैं चली गई वहाँ पे करने। अब वहाँ पे जाने के बाद एक हफ्ते में मैंने घर पे कॉल किया, मैंने बोला मेरे को घर आना है, मैं नहीं रहूँगी, छोड़ो ये सब नहीं होगा। उसके बाद फिर पापा ने बोला कि ठीक है मॉर्निंग तक का वेट करो, मैं मॉर्निंग में आऊँगा, लेके चलूँगा। उसके बाद फिर मॉर्निंग में सोचा नहीं, अगर मैंने यहाँ पे गिव अप कर दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर घर चली जाऊँगी, फिर वही ताने घर वालों के, तो उससे अच्छा मैं रुक जाती हूँ। फिर मैंने मॉर्निंग में बोला रहने दो, मैं रुक रही हूँ, छोड़ो। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे रुक गई। उसके बाद फिर वहाँ पे स्टार्ट हुआ, मैंने अपना पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, सी। अच्छा। फिर वहाँ पे जब मैंने सी पढ़ा मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। लैपटॉप मेरे पास क्लास 9 से था, पर मेरे को इतना भी नहीं आता था कि मैं नोटपैड ओपन करके एक कोड भी रन कर पाऊँ। अच्छा। लैपटॉप में बस मूवीज देखते थे और गाने सुनते थे, जो सब लोग वही करते। और उसके बाद जब वो हिट हुआ उसके बाद फिर मैंने सी सीखा। फिर धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट आने लगा, मैंने पहला अपना कोडिंग अपने फ़ोन में किया। और जब मैंने नेम अपना प्रिंट किया, हाय आई एम छवि, जैसे हेलो वर्ड प्रिंट करते हैं ना, वैसा पहली बार किया, तो मैं सबको दिखा रही थी, मम्मी देखो ये मैंने प्रिंट किया, ये देखो। और फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ। देन सेकेंड ईयर में जब मैं आई डिप्लोमा के, तो हमेशा मैं फ्री चीज़ें ढूंढती थी, कुछ भी फ्री मिल जाए मुझे पढ़ने को, क्योंकि मेरे पापा से तो पैसे मांगने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और तब मैं क्या करती थी, खुद के पैसे बनाने के लिए जो एक्सेल शीट्स होती थी कॉलेजेस की, उनको डेटा फीड करना होता था कंप्यूटर में, तो वो मुझे कॉपी देते थे, मैं उनका देख देख के फीड करती थी। अच्छा। और वहाँ से 200 रुपये 300 रुपये ऐसे करके इकट्ठा- पर आवर या पर डे? जैसा सीट आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता था। उसके बाद फिर वो करके थोड़े बहुत पैसे बनाते थे। फिर मेरे को मसाई के बारे में पता चला, जहाँ पे फ्री में एक दिन में आप, एक दिन का वो होता था, संडे को क्लास चलती थी, हाँ, कोडिंग जिसमें वर्कशॉप हाँ होती थी। कोडिंग वर्कशॉप होती थी, जिसमें एक सर थे, मुझे अभी उनका एकदम से नाम नहीं याद है, पर तब मेरे पास सारे अकाउंट थे, ट्विटर, लिंक्डइन, गिटहब, ये सब कुछ था। तो मैंने वहाँ से वो वेबसाइट पहला क्लोन बनाया क्रिकबज का, जिसमें मेरा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू में मैं फेल हो गई, दैट वाज डिफरेंट थिंग। लेकिन मैंने जो पहला क्लोन बनाया था अपनी लाइफ में, उस कंपनी में मेरा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हुआ, मैंने इंटरव्यू भी दिया। उसके बाद फिर वहाँ पे जब मैंने मसाई के बारे में वो फ्री देखा, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पे पढ़ सकते हो और पैसे नहीं देने हैं। फिर एक बार शशांक सर ने मेरे को डायरेक्टली कॉल किया कि यू आर डूइंग गुड, ऐसे ऐसे करके तुम मसाई में एडमिशन ले सकते हो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, और मैंने एडमिशन ले लिया, ISC साइन कर दिया, और मैंने किसी को भी नहीं बताया। अच्छा। अपने ये कौन सा ईयर की बात है? 21 में। 21। तो मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। फिर लास्टली जब साइन करने के बाद मैंने अपने पापा को बोला कि देखो मैंने इतना इतना कर दिया है, अगर जॉब नहीं भी लगी तब भी 3 लाख रुपए देने हैं, अगर कुछ नहीं हुआ ऐसे जाइए। तो फिर मैंने बोला पैन कनेक्ट करवाया है, तो ऐसा नहीं होगा कि पैसे नहीं देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने साइन कर दिया है, और अगर नहीं दिए तो घर पे पुलिस वाले आएंगे। उन्होंने बोला कि आने दो, कुछ भी होगा देख लेंगे। फिर मैंने जो उन्होंने मेरे को बोला था उस टाइम पे कि आने दो, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, तो उस टाइम से मेरे को एक भरोसा हो गया कि कुछ भी करूँ मैं, अगर मैं कभी भी गिरती भी हूँ तो मेरे पीछे मेरे पापा हैं जो मुझे संभाल देंगे।
तो उस टाइम से फिर मैंने मसाई ज्वाइन किया, जब किसी को कुछ नहीं पता था, मसाई के बारे में कोई जानता भी नहीं था। पूरे कॉलेज में मैं अकेली लड़की थी जो कॉलेज पूरा कभी गई ही नहीं। और कॉलेज में मैंने एप्लीकेशन दे जाके दिया कि मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है और अब मैं नहीं आऊँगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे नहीं आओगी, अटेंडेंस रिक्वायर्ड है। मैंने बोला मैं नहीं आ रही। उसके बाद फिर उस दिन के बाद से मैं कॉलेज नहीं गई। अच्छा, और ये कौन सी ईयर की बात है? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? सेकेंड ईयर में जब मैं थी, थर्ड सेमेस्टर चल रहा था हमारा। फिर जब मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ, मैं मसाई ज्वाइन की हुई थी और इस वजह से डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स की वजह से मेरा असिंक भी आया, क्योंकि सेम डे एग्ज़ाम और सेम डे मसाई का यूनिट एग्ज़ाम। फिर मैंने जल्दी से जाके इवनिंग का एग्ज़ाम दे के आके फिर जल्दी मसाई का एग्ज़ाम कंप्लीट करके सबमिट किया। वैसे वैसे हुआ, फिर कंप्लीट हुआ। जब मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ उस टाइम पे मेरे साथ मेरी जॉब भी थी और जो मेरे एचओडीज थे, जो मेरे टीचर्स थे, जो मुझे कभी कॉलेज में गए ही नहीं, वो मुझे जानते ही नहीं थे। अभी मैंने प्रीवियस 2-3 महीने पहले मैंने वहाँ पे भी एक अपना, उन्होंने मेरा एक सेशन भी करवाया, जो टीचर्स मुझे जानते ही नहीं थे बिल्कुल भी। सारे बच्चों के साथ में? हाँ, उन्होंने मेरे को बुलाया कि तुम मेरे बच्चों को थोड़ा समझा दो कि कैसे करना है। और फिर ऐसे ऐसे करके फिर मेरी फर्स्ट जॉब लगी डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद। फिर उस टाइम पे जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे को बेंगलोर जाना है, अयोध्या और बस्ती से रह के मेरे को डायरेक्ट बेंगलोर आना था, वो भी फ्लाइट से। और फिर घर वाले तो सब ऐसे कैसे भेज देंगे यहाँ से उतनी दूर अपनी 22 साल की लड़की को। कोई मतलब कोई भी यूपी का इंसान जिसकी दुकान होगी वो अपनी 22 साल की लड़की अकेली बेंगलोर तो नहीं भेज देगा। ये एक प्रैक्टिकल थिंग है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसे तो नहीं जाना है। उसके बाद फिर पापा को बोला कि क्या करे, जाए या नहीं जाए। मैंने बोला बेंगलोर जाना है, मम्मी तो बोल रही नहीं जाना है, इतनी दूर है। पापा बोले बाप, जैसे कानपुर वैसे बेंगलोर चली जाओ। फिर मेरे चाचा ने मेरी टिकट करके दी। मेरे चाचा अकेले आए तुम? नहीं, मेरे बड़े पापा मेरे को लेके आए, क्योंकि मेरे बड़े पापा डिफेंस में हैं, तो उनकी पोस्टिंग थी बेंगलोर में 5 साल। तो उनको पता था सब कुछ कि क्या कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो मेरे बड़े पापा मेरे को लेके आ गए और मेरी जिस कंपनी में जॉब लगी वो स्टार्टअप थी। तो फिर स्टार्टअप में तो ऐसा होता था कि कंपनी के बाहर तो कोई बैनर लगा नहीं है, हम लोग आके खड़े वहाँ पे कंपनी ढूंढ रहे, कंपनी कहाँ है, क्योंकि हमारा माइंडसेट तो था कि भाई कंपनी है, कुछ तो लोगो तो होगा बाहर, हमें पता तो चलेगा इसके अंदर कंपनी है। और वो कंपनी एक अपार्टमेंट में थी, तो अब हमें तो कुछ पता ही नहीं। अब बड़े बाबा को लगे कि कहीं कुछ स्कैम तो नहीं हो गया, इसको लेके आ गया इतना दूर। उसके बाद फिर हम गए, हम मिले हमारे मैनेजर से, मतलब ही सो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे वो, जिन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर जॉब दिया, मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। फिर मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर अभी मैंने स्विच किया 2 मंथ बिफोर एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। गॉट इट। कहाँ पे काम कर रहे हो अभी तो? अभी रॉम्बस में। रॉम्बस। सही। उर्मित? जी सर। यस, बताओ। So I am Urmit. I come from a small town and it's in Haryana, Hisar. तो बचपन से ही वही था कि आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, मार्क्स अच्छे आते थे, सो आई ऑब्वियसली चोज नॉन मेडिकल। एक्चुअली टीचर्स चोज दैट फॉर मी कि नॉन मेडिकल कर लेगा, निकाल लेगा। सो आई वॉज डूइंग नॉन मेडिकल एंड गोल वही था कि मेंस निकालूंगा एंड उसके बाद एडवांस वगैरह करके एंड आई विल गेट अ स्टेबल इंजीनियरिंग जॉब। बट टर्न्ड आउट कि मेरा भाई भी साइंस फील्ड में ही था एंड ही वॉज वेरी गुड इन केमिस्ट्री। तो ही चोज BSc केमिस्ट्री की केमिस्ट्री करके ही यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर और PhD करना था। बट समहाउ हैज़ बिकम फ्रॉम नॉट सो गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो भाई का था कि ही वांटेड टू गेट अ जॉब एज सून एज, सो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड उसकी लग गई थी जॉब। सो आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड जब उसकी जॉब लग गई थी एंड मुझे तब आई गॉट शॉक कि मतलब साइंस पढ़ने के बाद ही इज सो गुड इन साइंस बट स्टिल ये गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ जब लास्ट में इसी में आना है। ऑब्वियसली एक वो भी था कि शायद पेरेंट्स भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि अगर लाइक मेंस निकल गया विच इज़ वेरी हार्ड ऑब्वियसली, अगर वो नहीं निकला तो प्राइवेट कॉलेज भी कुडंट अफोर्ड। तो मुझे था कि चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स बी प्रैक्टिकल की और कुछ ट्राई करते हैं। तो 12th के बाद आई चोज बैचलर ऑफ आर्ट्स की आर्ट्स करूँगा, BA करूँगा, कॉलेज में इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, निकाल लो इजीली एंड आई विल डू साइड जॉब्स साइड बाय साइड। तो छोटी मोटी जॉब्स करने लग गया, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सब्जी मंडी में काम किया एंड कॉलेज के साथ साथ थिएटर करने लग गया। तो स्कॉलरशिप मिल गई तो वो भी ईजी हो गया, फीस वगैरह भरना। तो सेकेंड ईयर में आके मुझे था कि अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा एंड देन लाइफ सेटल हो जाएगी भाई की तरह। बट उस टाइम कोविड आ गया, तो ना बाहर जा सकता हूँ गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम प्रिपेयर करने एंड ना उस टाइम एग्ज़ाम्स वगैरह हो रहे थे। तो वो काफ़ी बड़ा टाइम आ गया कि अभी 6-7 महीने तो पता ही नहीं अगले क्या होने वाला, राइट। वी वर सो अनश्योर। तो उस टाइम लगा कि कुछ और ट्राई करता हूँ। तो वहाँ पे पता चला कि वेटनरी लाइक एग्रीकल्चर इज़ लाइक वेरी वास्ट इन हरियाणा और वहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी।
तो उसमें वो वेटनरी का कोर्स करवाते थे कि तुम कोर्स करो एंड यू विल बी असिस्टिंग अ वेटनरी सर्जन एंड साइड बाय साइड यू कैन कंप्लीट योर डिप्लोमा और उसके साथ तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी एंड इट्स 100% प्लेसमेंट डेट। तो उसकी तैयारी करने लगा। ऑब्वियसली आता था अच्छे से पढ़ना लिखना, तो आई क्रैक्ड इट। तो टॉप 60 बच्चों में मेरा नाम आ गया था, तो टॉप सीट मिल गई। बट फिर वहाँ पहले दिन गया, वहाँ जाके उन्होंने दिखाया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। मेरा नहीं, ये नहीं हो पाएगा। कि उन्होंने पहले दिन ही ऐसे विजुअल्स दिखा दिए मुझे कि ऐसा लगा कि भाई दिस इज़ नॉट माई थिंग। तो फिर वहाँ पे नहीं गया तो पापा गुस्सा हो गए कि अच्छी जॉब है, सारे इसके लिए निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक वहाँ पे अकेडमीज आर बेस्ड कि एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए ये अकेडमी है पूरी। बट मैंने बिना इसके निकाली, तो उनको लगा निकाल ली तो क्यों छोड़ रहा है। बट आई लाइक कि नहीं, जिद्दी था थोड़ा कि नहीं करूँगा। बट चलो वो छोड़ दिया। उसके बाद फिर भाई बोला और कुछ नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। ऑनलाइन ट्यूशन्स लेने लग गया, तो वो हो गया। बट फिर एक दिन बाय चांस मैं भाई के ऑफिस में चला गया। वहाँ जाके देखा कि इट्स सुपर बोरिंग, कि कोई काम नहीं कर रहा, पूरा दिन ऑफिस में वाईफाई लगवाया हुआ है, बैठ के चला के आ जाते हैं हम लोग कि नहीं हो पाएगा ये भी। क्रिएटिव जॉब चाहिए मुझे, कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट मैं चाहूँ डेली सुबह उठ के जाना, कि जा सकूँ कि यहाँ पे कुछ काम करने को मिलेगा। बट वो नहीं था। और उसी टाइम जब मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, उसी टाइम मेरा एक एग्जाम भी क्लियर हो गया। तो मैं ज्वाइनिंग करने भी नहीं गया। पापा फिर गुस्सा, पापा ने फिर दम लाया कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो उस टाइम मेरा भाई आया, भाई ने आके जस्ट एक बात समझाई कि बहुत अनस्टेबल चीज़ें गई, तू एडवर्टाइजिंग कर रहा था, वेटनरी में जा रहा था, गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट पीपल आर गोना जज यू बाय अ पैरामीटर, जो कि मेरे से सेट हुआ है, राइट। ही गोट अ गवर्नमेंट जॉब इन 22 एंड आई वॉज 22, आई वॉज 21.5 बैक देन। तो भाई ने बोला कि वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट पीपल आर जज यू बाय दैट, कि इसका भाई लग गया था नौकरी बट ये अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। तो तेरे पास अभी यहाँ से मोटा मोटा 1 साल है, यू कैन डिसाइड कि तूने क्या करना है क्या नहीं करना, बट अब जो भी शुरू करे यू डिसाइड कि तुझे वही करना होगा, राइट। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। बट वहीं पे उस टाइम मेरे एक और कज़न है भैया दिवांशु, ही वॉज ऑल्सो इन मसाई। तो ही वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग मसाई, ही हैड डन हिज बीटेक फ्रॉम CS ओनली, बट वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए थे बिकॉज हरियाणा। तो उन्होंने आगे बोला कि ऐसे ऐसे मसाई है एंड पीपल आर पेइंग दिस मच। तो उन्होंने मुझे एक अपने पास्ट बैचमेट से मिलवाया एंड तो उन्होंने मिलवाया कि देखिए ये CS की जॉब कर रहा है, आज किम क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो मैंने उनसे पूछा, पहला क्वेश्चन वही, कितना कमा रहे हो, कितना मिलता है। सो ही वाज लाइक कि भाई 40-42 तक मिलता है, सब कुछ कट काट के 40 हो गए। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली की इनकम मिला के, मम्मी पढ़ा रहे हैं, पापा जॉब पे जा रहे हैं, सबकी मिला के उसकी आधी भी नहीं थी। तो लाइक भाई 40 तो बहुत हो जाएगा यार, ये तो अमीर बंदा है। तो वो चल रहा था दिमाग में। तो 40 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। लाइक कि 40 अगर इतना मिल रहा है एंड ही हैड लाइक सम 3-4 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे अगर इतना मिल रहा है तो आई एम गुड टू डू दैट। तो आई वाज लाइक कि चलो करते हैं कोडिंग करते हैं। तो थोड़ा खुद ट्राई किया एंड देन आई गिव द एमसेट और उसके बाद मसाई में एडमिशन हो गया। ये कौन सी ईयर की बात है? दिस इज 22 स्टार्टिंग, बैच 17 था उस टाइम। लेटर आई वाज इन बैच पीछे, तो मयूरी में 2 बैच नहीं, आई स्टार्टेड विद बैच 17, देन आई वाज इन बैच 19। मैं तो batch दोनों 19 मेरे बैचमेट्स हैं। अरे वाह। तो वो किया था एंड तो 17 में शुरू हो गया। बट देन थोड़ा वो फ्रिक्शन भी लगा क्योंकि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। बट धीरे धीरे समझ आने लगा, फैकल्टी वाज गुड एंड ऑल्सो ये IE सेशंस वगैरह होते थे, तो काफ़ी ईजी रहा। बीच में मतलब खुद भी ट्राई करता रहा, प्रोजेक्ट्स बनाता रहता था। तो इन द एंड लास्ट में जॉब लगी एंड आई वाज इन प्री प्लेसमेंट, जो उस टाइम होता था, शायद अभी भी होता है, कि थोड़े बच्चों को पहले प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं पिछले बैच के साथ। तो आई वाज इन दैट बिकॉज आई वाज लाइक कि अब टू द मार्क हो गया था मैं कोडिंग के। देन आई गोट एन ऑफर फ्रॉम कपिवा, जो अभी अपनी टेक टीम शुरू कर रहे थे। सो दे ट्रस्टेड मी विद इट एंड टर्न आउट माई फर्स्ट सैलरी वॉज मोर देन 40,000। तो इतना वो उस टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट अभी वो भी कम लगता है। तो ऑब्वियसली आई हैव ग्रोन फ्रॉम देयर। तो अभी आई थिंक 3rd कंपनी है मेरी, कपिवा से स्टार्ट हुआ। देन आई वाज इन सम SaaS बेस्ड इन गुड़गांव, नाउ आई एम इन एमिरेट्स। तो अभी सही चल रहा है। Got it. तो टचवुड सही है, चल रहा है करियर। Nice. रोहित, रोहित के तो भाई ने मुझे मैसेज करा था और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई टेल यू। बट हाँ रोहित बताओ। माय नेम इज़ रोहित, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो मैंने बायोटेक में इंजीनियरिंग की थी अपनी। बायोटेक लेने का अगेन कोई रीज़न नहीं था, थिंग इज़ कि मुझे चंडीगढ़ में रहना था, बस चंडीगढ़ में ही कॉलेज चाहिए था। सो वहाँ पे 2 ही ब्रांच उस टाइम पे अवेलेबल थी मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, बायोटेक और फूड टेक। तो मैंने बायोटेक सेलेक्ट की थी। तो बायोटेक जब मैंने स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग में लोग ये बोलते थे कि काफ़ी इमर्जिंग ब्रांच है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है इसमें, तो 4 साल बाद तो बहुत जॉब्स होंगी इसमें। और आज भी यही बोलते हैं जब
जब कॉलेज से बाहर निकले तो जॉब नहीं थी। काफ़ी लोग जो मेरे बैचमेट्स थे वो या तो यूएस जा रहे थे या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। मैंने भी वही किया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की मैंने। IBPS PO क्लियर हुआ मेरा। यूनियन बैंक में मेरी जॉब लगी एज असिस्टेंट मैनेजर। बट मुझे पोस्टिंग मिली कर्नाटका में उडुपी के पास एक छोटा सा गांव था कटपाड़ी। अच्छा। वहाँ पे तो हम टोटल 5 लोग थे सिर्फ बैंक में। तो स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि नई जॉब है, बैंक की जॉब है, सेफ जॉब है, राइट। तो वहाँ गए, लैंग्वेज इशू, एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज, राइट, खाना बिल्कुल चेंज। ठीक है, मैं अकेले गया था वहाँ पे हिंदी कुछ लोगों को आती थी। मतलब एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे बैंक मैनेजर पहले आर्मी में थे, तो वो काफ़ी जगह गए थे तो उनको हिंदी आती थी, तो एक चीज़ मेरे लिए अच्छी थी। बट स्टिल मतलब ये था कि कोई भी कस्टमर आ रहा है उनको तो मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, राइट। प्लस बैंक में काफ़ी मोनोटोनस काम हो रहा था। जो कुछ चीज़ें मैंने सीखी थी जो बैंक में ऐसी नहीं हो रही थी जो होनी चाहिए थी, तो मैंने चेंज करने की कोशिश भी की। एक सिंपल सी चीज़ थी कि जब भी आप एक चेक एंड कैश कराने जाते हो, सो उसमें आपको एक बैक साइड पे साइन करना होता है कैशियर के सामने कि आपने ये कैश ले लिया, पर वो कोई नहीं करता था, सब अपने घर से करके लाते थे बैक साइड। तो मैंने वहाँ पे किया कि एक रेड पेन हम अलग से रखेंगे, उसमें कैशियर के सामने साइन करवाएंगे। तो वहाँ के जो कैशियर थे वही वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी नहीं कि नहीं क्यों करना है। तो वो 1-2 चीज़ें थी। फिर जब भी वहाँ पे कभी लॉन्ग वीकेंड वगैरह आता था तो मैं बैंगलोर आया था फ्रेंड्स के पास। वहाँ क्यों यहाँ की लाइफ में बहुत डिफरेंस था कि बैंगलोर बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे स्टार्टअप जस्ट मतलब बूम आया था इंडिया। ये कौन सी ईयर की बात है? ये है 15-16 की बात। तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट जैसे आया था, फ्लिपकार्ट बहुत आगे बढ़ रहा था, अमेजन ने आना स्टार्ट किया था, ऊबर आया था इंडिया में। तो मतलब जो हमें यही नहीं पता था कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है जिनका सोल्यूशन आज आ रहा था हमारे पास। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ कुछ करना है कि वहाँ पे मतलब कुछ लॉजिकल तो कुछ कर ही नहीं पा रहा ना। बस ठीक है, एक सेफ लाइफ है, आगे बढ़ते रहेंगे, वो बैंक में ही रहेंगे हमेशा। एंड दिस इज गवर्नमेंट जॉब, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो फिर मुश्किल से मैंने 11 मंथ्स कंप्लीट किए वहाँ पे, और मैंने रिजाइन दिया। इनफैक्ट मेरा 2 years का बॉन्ड था वहाँ पे, मैं बॉन्ड ब्रेक करके बैंगलोर आ गया। अच्छा। हाँ, बैंगलोर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया मैंने ऑपरेशंस में, कि ऐसे मसाई स्कूल करके नया खुला है, उनका एक बैच स्टार्ट हो गया। उन्होंने आपका नाम लेके मेरी प्रतीक से बात हुई, उन्होंने बताया कि 20 लोगों का बैच है और बहुत बढ़िया चल रहा है। 1-2 बंदे तो यहीं सोते हैं, ऑफिस में सोते हैं, वो जाते भी नहीं हैं, पूरा टाइम यहीं रहते। तो फिर मेरे को लगा कि ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन, और मेरी शादी जस्ट हुई थी शादी। तो ये था कि घर वालों को मनाना, सिर्फ घर वालों को नहीं, वाइफ को मनाना, इन लॉज को मनाना, वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि 6-8 महीने का ब्रेक ले लेना एकदम से। नहीं, बट फिर मैंने कहा चलो ट्राई तो करते हैं। मैंने फॉर्म फिल किया, एप्टीट्यूड टेस्ट था वो क्लियर किया, फिर ऑफिस में बुलाया मुझे, छोटा सा इंटरव्यू हुआ। योगेश थे, नृपुल थे, वो अच्छा गया इंटरव्यू। मतलब उनका आई थिंक एक ही पॉइंट पे वो मुझे देख रहे थे कि ये बीच में छोड़ के तो नहीं भाग जाएगा, क्योंकि फिर पूरी फैमिली है, वही कि कोई प्रेशर आएगा तो ऐसा ना हो कि छोड़ के भाग जाए। बट वही था कि मैंने उनको ये दिखाया कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही करना है यहाँ पे। कि एक फाइनली एक ऐसा करियर पाथ सेट करना है कि जहाँ पे मैं एक अच्छी पोजीशन पे जा पाऊँ। तो फिर मैं मसाई में आया, मसाई स्टार्ट किया। स्टार्टिंग अच्छी थी क्योंकि बेसिक्स सिखा रहे थे, तब अच्छा था। अनुपुल ने ही पूरा करिकुलम सेट किया हुआ था, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर जैसे जैसे वहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी, जैसे रिएक्ट आया तो हर बैच की रिएक्ट की हालत बहुत बुरी। तो फिर अब ये था कि वो चीज़ें तो समझ आ गई थी, पर अब ये क्या है, इससे यहाँ कैसे जाए। तो उसमें बहुत टाइम लगा। उसमें भी एक्चुअली हम काफ़ी डाइवर्ट हो गए थे। हमें लग रहा था कि यहाँ नहीं समझ आ रहा तो कुछ यूट्यूब देख लेते हैं, कहीं और से देख लेते हैं। तो एक लूप होता है ना कि आप वीडियोस देखते रहते आपको लगता है आपको समझ आ रहा है, बट आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते तो वो समझ नहीं आ रहा था। आपको बस पता लग रहा होता है कि चीज़ें हो रही है। फिर वापस से मैंने फिर नृपुल से बात की काफ़ी देर, अमन से बात की, राइट। उससे चीज़ें समझ आई कि नहीं, तुम्हें एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, तुम उसमें घुसोगे तभी तुम्हें आएगी चीज़ें। फिर वापस से स्टार्ट किया एक तरह से, और धीरे धीरे बढ़ते गए। बैच जैसे हमारा जैन में कंप्लीट हुआ, फिर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाया था स्टार्टिंग में, राइट। बाद में 1-2 जगह बैठा और थोड़ा ब्रेक लग गया था तो नहीं हो रहे थे इंटरव्यू। फिर कोविड आ गया, ठीक है। बिल्कुल एकदम बंद हो गई, कोई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा, तो कोई हायर ही नहीं कर रहा था।
फिर अप्रैल में मुझे एक स्टार्टअप के बारे में पता लगा जिसका प्रोडक्ट अभी लॉन्च होना था और उनका जो फ्रंट एंड डेवलपर था उसने छोड़ दिया था। तो उन्होंने मुझे हायर किया कि तुम्हें 1 मंथ हम देखेंगे Probation इसमें काम रखेंगे। करके, हाँ उसके बाद देखेंगे। तो मैंने काम किया उनका, बट वो थोड़ा स्लो था, मतलब जो डेडलाइंस थी वो नहीं मीट हो पा रही थी, बट काम कंप्लीट हुआ मेरा। तो उन्होंने वही मुझसे पूछा कि क्यों हुआ था, तो मैंने उनको पूरा बताया कि भाई मैं फर्स्ट जॉब है मेरी, फर्स्ट टाइम मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। तो बट उनको ये अच्छा लगा कि हाँ काम हो जाएगा हमारा एटलीस्ट, उन्होंने मुझे हायर किया। 2 साल तक वहाँ जॉब किया मैंने, अकेला फ्रंट एंड डेवलपर था। उन्होंने 3 बार पिवट किया, तो हर बार स्क्रैच से नई वेबसाइट बनाना, हर बार नई थीम आती थी, नई यूएक्स यूआई इंजीनियर्स आते थे, वो अलग बनाते थे, उसको पूरा बनाना, तो डेवलप किया। तो वो काम बहुत था, मतलब दिन रात काम था वहाँ पे। ये कॉमन फ्लोर्स के को-फाउंडर्स थे। यस, हाँ हाँ। करेक्ट। तो फिर उसके बाद अब मुझे लगा कि 2 साल इतना काम किया तो बहुत आ गया, अब तो मेरे को सब कुछ आता है मुझे। ठीक है, तो कुछ बड़ी कंपनी में चलते हैं। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किए, बट ऐसा नहीं होता कि आप जो काम कर रहे हो सिर्फ उसमें अच्छे हो तो आपके इंटरव्यूज क्रैक होंगे। करेक्ट। वो बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो मेरे 21 इंटरव्यूज लगातार फेल हुआ था। फिर पर मेरा ये था कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे मैं फेल हो गया, तो मैं बैठ जाता था कि यार ये नहीं हो नहीं रहा मुझसे। जो भी इंटरव्यू होता था मैं उसमें नोट करता था कि ये क्वेश्चन को नहीं आ रहा, उसने क्या पूछा मुझे आंसर नहीं आता था। काफ़ी बार मैं उसी से पूछ लेता था इसका आंसर क्या है, नहीं तो मैं खुद उसके बाद पूरा उस पर काम करता था कि क्या चीज़ मेरे को नहीं आती। तो उसके बाद में इतना कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ पूछेगा तो मैं आंसर तो दूंगा ही दूंगा उसको। फिर मेरे लगातार 6 इंटरव्यूज़ मैंने क्रैक किए। और फिर पर मुझे ये था कि एक स्टेबल कंपनी में जाना है, अब स्टार्टअप में नहीं जाना। साथ में मैंने काफ़ी MNCs के बड़े कॉर्पोरेट्स के भी अप्लाई किया था काफ़ी जगह। मैंने अमेजन में किया था, मैंने फ्लिपकार्ट में भी किया था, गूगल वगैरह सब में किया, और वॉलमार्ट में भी किया। कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आया। एक दिन वॉलमार्ट से आया इंटरव्यू। तब तक मैंने 3 जगह ऑफर लेटर ले लिए थे और मेरा एक फाइनल था कि मैंने यहाँ ज्वाइन करना है। मैंने अपना माइंड सेटअप कर लिया था, बट मैंने सोचा कि इंटरव्यू देख लेते हैं कि बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू होते कैसे हैं, कि क्या पूछते हैं। उनके 4 टेक राउंड थे और एक फिर मैनेजर राउंड था और फाइनल HR राउंड। तो इंटरव्यू देना स्टार्ट किए और वो एक करते क्रैक होते गए। मतलब चाहे मेरा लक अच्छा था कि जो भी वो पूछ रहे थे मुझे उसका आंसर आ जा रहा, कि DSA प्रॉब्लम पूछते मैं सॉल्व करने बैठता और वो सॉल्व हो जाता। फिर मेरा फाइनली हायरिंग मैनेजर राउंड था। ठीक है। मैंने मसाई में कॉन्टैक्ट किया कि उसमें क्या बोलना है, मुझे आइडिया भी नहीं है, कभी हुआ भी नहीं ऐसा राउंड कि मैनेजर अलग से क्या बात करेंगे। फिर मैंने धीरे धीरे काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने समझाया कि यही चीज़ें पूछ सकते हैं कि इसलिए कि आप सिलेक्टेड हो उसमें, पर तो लास्ट देख रहे कि कल्चर फिट हो या नहीं। तो मैंने आपसे भी बात की थी तब, मैंने आपसे भी पूछा था, आपने 2-3 क्वेश्चन मुझे ऐसे बताए थे कि ये वो पूछेंगे देखना, और एग्जैक्ट उन्होंने पूछे थे। तो वो ऐसे धीरे धीरे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने गैदर किए, काफ़ी चीज़ें अपने आंसर्स पहले से रेडी करके रखा। तो स्टार्टिंग में उन्होंने 15-20 मिनट तो वही सब पूछा, फिर वो सीधा ये आगे जो काम किया उस पर, तो उनका एक्चुअली यही देखना था तो काम किया वो उसको आता या नहीं है। वो बहुत डीप में अंदर जाते गए तो फाइनली वॉलमार्ट हो गया। सो 3 साल मैंने वॉलमार्ट किया, उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ, अभी मैं टेक लीड हूँ वहाँ पर। यस, बताइए। Hi, my name is Ahmed and I born and brought up in Mumbai. And then I took my software engineering full time and I completed it. I started my first job, but I was still struggling with basics or coding. So I found out about Masai online and I applied. I joined. Which year was this? This is 2020 post COVID batch, remote batch. First COVID. Apache. Yeah. अरे वाह, nice. And then I had a lot to learn at Masai, and since then I have worked at 2 different fintech startups and continuing that. सही है। कहाँ से अहमद, थोड़ा सा just tell me about the background that you have, थोड़ा सा deeper. I did software engineering, but I didn't. ये कहाँ से करी थी सॉफ्टवेयर? Mumbai University. मुंबई यूनिवर्सिटी। But I didn't put a lot of effort into learning coding or those things. Those days, in Europe there used to be AI. So I was very much in. AI was there since last 30 years, 40 years. But those days were the TensorFlow and these PyTorch, they were long. अच्छा, हाँ। Or डेटा साइंस काफी ज्यादा डिमांड। yeah. So within student circle, this is what we used to talk about. And so I didn't learn Python or Java, basics I knew, but not production level.
So at my job, I felt like let's say something that could be done in 1 week or like 1 day. I was thinking longer, or like I was lacking basic. So I decided to like join massage. Acha. So it's just fresh out of college you have joined massage. No, I did one job. I was But- doing it. Acha. For how long you have worked 1 with it? year, I think. Yeah. 1 year. Acha. And then you decided कि अभी और थोड़ा सा सीखना I जरूरी है. want to learn properly so that I'm more independent. And this job was in software development only. Correct. Okay. Nice. Yes, final. Hi, Aditya. I'm Aditya. I'm from Kolhapur, Maharashtra. I've done my till high school. I've done कोल्हापुर high school. जो चप्पल वाला जो Yeah. कोल्हापुरी चप्पल. So till 10th, I was in Kolhapur. I was studying in Kolhapur. Then after 10th, one day my dad came and he said, for higher secondary school, go out somewhere else. Don't stay here. Now I was like very happy that okay, I wanted to go out. At least I was happy. Then I looked at my mom. My mom was like, she was already angry on my dad. But then I went to Hyderabad. वहाँ पे I was in Naraya. 2 साल I spent there, and after that I wanted to do car designing. Car designing. Yeah. Wow. Now there were like very few colleges in India, and one of the college was already there in my city, Kolhapur. So I came back to my city. Now I had like 2 options: either I go to Pune or Mumbai, or I just stay in Kolhapur. Now I stayed in Kolhapur because I got scholarship there. So 4 साल वैसे ही गए. Out of those 4 years, 2 years COVID में चले गए. And then last year there was some landslide at my college. So 4th year भी वैसे ही चला गया. There was no practicals, nothing. And as a car designer, you need like a lot of practice and everything. Correct. वो तो कभी हुई नहीं थी. Then I started learning things on my own. All the softwares. I started with Blender. I started doing that. Then after graduation, I met one guy from California and Goa. So he asked me like, what do you do and everything. I said I have done my car designing. I have my own page. I do car designs and everything. Then he said, I have one old Ferrari. Will you design it? Oh wow. I was like, okay. And cool. how did you get this? So he was there for a Royal Enfield event, and I also went there. For So you do the bike riding or? No. I you just do- went for the event. It's like pretty close from my house, so Got it. it's like a 1-day trip. So I just went. I met him there. He said, "Will you redesign my old Ferrari?" And how old were you at that point of time? I was, I think, around 19 something. So someone saw you at 19-year age, and what? Yeah, did he you give saw them my on- page, Instagram page. He was And- like, "Will you design it?" Wow, nice. So I was like, okay, let's give it a shot. So I started. Now those projects were like very long running projects. It was like going very slow. Yeah. Now I wanted to do masters as well. I wanted to do job, but jobs were like very less that time. And for someone who like just graduated as a car designer, for them it was like almost nothing. You won't even get a job. So I wanted to do masters. So I started looking in Mahindra and then DC Avanti. But then fees there were like 15-20 lakhs. I was like, there is no point in doing it. So anyway, if I do it, my dad was like, if you want to do it, do it. But Right. I was like, just to cover up those 30 lakhs, let's say 2 years. Just to cover up those 30 lakhs, it will take, for me, it will take like at least 10 years. Correct. From your salary. you- Yeah, everything. So I was like, there is no point in doing it. So I continued with my freelancing. He kept giving me more projects. Even his friend wanted to redesign his Porsches and everything. So I started working on Porsche designs as well. Then I also, at that time, immersive websites were like something going pretty good. So I thought I'll also implement my 3D skills in website. So I wanted to learn coding. Now I don't want to go through like 4 years of coding and everything. So already one of my friend was already in Masai. Acha. He Which batch? suggested me, I think he was in 6, part-time 6. Okay. So he suggested me that. So I joined Masai. I started learning. Now first 3 months were like very easy. It was just front end. But then we moved to the back end. I was like, what is this? I can't. Then I asked him like, how did you do it? Because he was also in my same, he was my classmate. He also done car design. Then he said ki you just have to do like practice and everything. So I started doing more practice and it was like, okay, fine, I can do it. Then after Masai,
I started applying for jobs. Even the companies which were coming, those all from were like Delhi. I was like, मुझे दिल्ली तो नहीं जाना है. Then one company came from Bangalore. It was Dashbus. It was like completely different. That company was not related to tech or anything. Correct. They were doing comics at that time. So, and they were using AI completely. And I was like, this is the time where I should start working here. At least because they're using AI and everything. Got it. So I joined that company. And for the interview, there was an interview on, I guess, Friday. And that day in Maharashtra, there was no internet for the whole day. And Yeah. at that day, my interview was there. So I just traveled like 50-60 kilometers to near From there Karnataka, to- Bangalore, Okay. Karnataka border. There I gave my interview. And after like 10 minutes of interview, the interviewer called me. He was like, when can you join? I said, from Monday, in 2-3 days. And he was like, I'm already halfway through. yeah. Then he was like, take your time. Let's say you can join like next week. So then my joining was on 1st June, and he gave me offer later on, like right one day before that. Till then I was not sure whether this company is legit or not, because I searched on Google, LinkedIn, everything. There was nothing related to it. It was a startup. Correct. There was no office address, nothing. Even I called the HR. HR didn't pick up the call. So I was like, is this a scam or something? But then dad was like, at least let's go. We'll see. So your dad accompanied you to. yeah. Okay. Nice. So came to Bangalore, then went to the office, and office was like pretty chill. I went with a formal shirt and everything. That the moment I entered, I saw 2 guys walking out with the shorts. Those were from the tech people. And I was like, this company is like very chill. That was the only day I wore formals. Nice. After that, I never wore it. Nice. Nice. So where are you now? I'm at Dashbus only. Dashbus only. Yeah, I started as an intern there. Did like internship for 6 months, then moved to the AI artist, then become the senior artist. Now I work as a AI expert. So you are basically applying programming in the work that you are doing. So you are more into designing, correct? Yes. So, and you're applying all the learning that you have from a programming perspective? Not completely, but Okay. at some point, yes. Got it. Nice. So let's do the next segment where I want to basically know more about what you guys want to tell your 17-year-old self. Okay, you guys have already thought about it, but just wanted to know what you guys want to tell your 17-year-old self if you'll speak to that 17-year-old Aruna or anyone, Ahmed, at right now, and what piece of advice you want to give, and keep it short. We'll start with from here. Let's start. Yep. Yeah, Aditya. So First of all, right now, how old are you? I'm 25. 25. Achha. So it's considerable period of time. Yeah. And immense amount of learning so far. Okay, go ahead. First of all, like congratulations for the results. I'll say whatever you're gonna do or whatever you want to do, go for it, because you're still at a learning phase. You're still not sure whether you want to do this or like you want to just follow this path. If you're not sure, just follow whatever you want. Go for it. Go with your heart. Yes. You'll make a right bet in the end. Yeah. जो होगा देखा जाएगा बाद में. If you want to do it, just do it. So that's how I started car design. Got it. Awesome. Yeah. Ahmed. Yeah, so I was like I said, like I invested heavily in theory, like I was studying AI or machine learning, those kinds of things. And like in industry wise, if you see, like those things don't matter as much, like AI or blockchain, whatever new technologies, they take their time to find their position in the existing ecosystem. So it's like maybe do internship then, or like tech related or whatever, like production level, that is where the real learning is. So this is what you are going to tell 17-year-old Ahmed? Maybe not like engineering days, like older than 17. Okay. Yeah. So 17 like was like after 12th standard. Yes. So like for example, imagine that in front of you, 17-year-old Ahmed is standing. Okay. Now, how old are you? I'm 29. 29. So it's been 12 years, correct? So you have seen the life, Yeah. ups and downs and everything. Okay. What do you want to tell him that you need to basically do this as a piece of advice? So think of it that you have come from the future and you're telling him, do this, Ahmed, and you are going to be sorted.
Family wasn't as worried or anything like this. Like after So you'll 12th say standard- calm. Yeah, We- like I was good at math, so my family was like, you should do engineering, and like I evaluated all the modules, and software engineering made sense. Of like seemed easier than like mechanical or civil. That didn't seem as interesting. Software felt like easy, like Got it. behind your screen you can chill. Yeah. So that is why it's like I'll try software engineering. Yeah. So just go ahead with software engineering. That is what you are going to basically tell him. Yeah. Yeah. And follow the process. You will eventually become successful in life. Yeah, I think. Awesome, Rohit. I think stop doubting yourself. Yeah. But how old are you now? If you don't mind telling me. I'm 37. 37. Yeah, almost double. Yeah. 19. Right? Yeah. So lot of Yes. advice that you want to give. हाँ, Yeah. आई थिंक सबसे बड़ी यही होगी कि स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ. सो मैं स्टार्टिंग से एक एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि मुझसे चीज़ें याद करके ऐसे लिखी नहीं जाती. मैथ्स में हमेशा अच्छा था मैं. मेरे बोर्ड में 99 आए थे 10th में एंड 12th में 97. तो प्रैक्टिकल चीज़ें अच्छी लगती थी. तो पर उस टाइम पे वही ना कि सबका प्रेशर होता था, पेरेंट्स का, फैमिली का, कि मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे, तुम मतलब अच्छे मार्क्स इसमें साइंस में क्यों नहीं अच्छे कर पा रहे, सोशल स्टडीज़ में क्यों नहीं अच्छे कर पा रहे. तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे मेरे भी यही चीज़ रहती थी. Got it. बट आज ये चीज़ समझ आती है कि स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं ना, मार्क्स के बजाय. कितने मार्क्स ला रहे हो तुम, कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता. अगर तुम काम अच्छा कर पा रहे हो, अगर तुम काम को अच्छे से समझ के को डिलीवर कर पा रहे हो, तो वो ही सबसे बड़ी विन है. Got it. So you'll tell your 17-year-old ki stop doubting yourself, don't question your judgment, and focus on skills Yes. rather than any other thing. So this is what you're going to basically tell. Okay, awesome. Purmeet? So I would just want to tell him one thing कि कर लेगा तू. Go with the flow. हाँ, go with the flow. Obviously, like I had made a lot of mistakes. Switched careers, settled down नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था. I got software engineering, but उस टाइम कभी भी ये दिमाग में नहीं था कि I would like land somewhere, right? But I think I have this trust now कि अगर software engineering नहीं है, कुछ और career switch आता है अगर आगे life में, तो I would do good, right? And that Hurmit didn't have that confidence. So I would want to tell him that okay, trust yourself first of all, and don't be afraid to make mistakes. Don't be afraid to try new things. Don't be afraid to switch. क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा फ्रिक्शन था. लाइक आई टोल्ड यू कि पापा भी कहते थे कि क्या बार बार इधर उधर एंड ऑल दैट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट गोट मी हियर. कुछ एक चीज़ों का एक्सपीरियंस बाकी भी था, इंटरेक्शन मेरा काफ़ी रहा है लोगों से. तो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स हेल्प मी समवेयर इन लाइफ की टू क्लियर इंटरव्यूज एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई वुड सजेस्ट हिम कि keep trying, keep making mistakes. I think Keep learning from it. yes, keep learning from it. Obviously the Hurmit that imagine जो उसका था future, that is not near to what I have right now. So maybe he was wishing for some different future, but I know that he will be proud of this as well. Awesome. So I think make mistakes, you will land up somewhere. Awesome. Yeah, Shavi? I would say myself, don't worry, सब कुछ अच्छा हो जाएगा. वन डे जितनी भी चीज़ें तुमने सोची है वो सब कुछ मिलेगा. ऑन दैट टाइम आई वॉज लाइक कि सबको सब कुछ आता है. एवरी बिग पीपल्स जिसने सब कुछ अपने लाइफ में अचीव किए हैं उनको वो पहले से पता था. ऑन दैट टाइम आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट. जब मैं 17 क्लास 11 12 में थी तो आई वॉज लाइक कि इनको तो सब कुछ पहले से डिसाइडेड था तो इन्होंने ऐसा कर लिया. बट दैट ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज किसी को कुछ भी नहीं पता. सब मिस्टेक्स करते हैं, उससे सीखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं. तो अभी आई एम 24, तो आई डोंट हैव मच कि मैं उसको 17-year-old को इतना समझा पाऊँ. बट आई विल से कि डोंट वरी, सब कुछ फिगर आउट कर लोगे तुम. Got it. Awesome. Yeah, Mayuri? Yeah, so 17-year-olds, I just came out of 12th and मैंने already 12th CA start कर दिया था. I was started going to tuitions for the CA. So I would say कि don't so I was always a kind of average or above average student. तो एक वो होता है ना कि हाँ अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, वो जो एक आइडेंटिटी है कि yeah she does good in academic. तो don't उसको ओवर हाइप मत होने दो अपने अंदर कि यार फेल हो गए तो फिर कर ही नहीं सकते. इट्स लाइक एंड ऑफ द लाइफ. इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, एंड जो तुम्हें लग रहा है क्या बोलते हैं उसमें टाइम दो. इन्वेस्ट इन दैट थिंग एंड बी कंसिस्टेंट. एंड Awesome. Yeah. Runab? I'm not afraid. So
my life ka first failure was this 70 when I was 17-year-old. So if I get a chance, I go back and tell myself. So failure was when the results came out for the board. I failed. I got my first supplementary physics in physics. 12th board में. So that day it took me around 2 years to come out of it because I started comparing myself with the people I used to go on coaching or playing. कि भाई वो कर गया, उसकी कॉलेज में एडमिशन हो गई. I was an year behind with other classmates. So if I go back, I'll get a chance. I'll explain myself कि dude, it's just a failure. Doing everything in one go is a myth in life. जो हमें बचपन सिखाया जाता है कि एक बार में करना है because other people are doing it wrong. You can go for another attempt. Only thing you need to find out is what you did wrong in the first attempt. If you can figure out that on your own, कोई और नहीं बता पाएगा. You have to find out. You have to pick your own battle. You have to find your own battle. The only thing you need is discipline. घूमना गलत नहीं है, खेलना गलत नहीं है, but you have to have discipline की कितने देर घूमना है, कितने देर अपने आप को देना है, कितने दिन पढ़ना है. We should have that. That's it. Then you are doing good. Pick your own battle. Don't compare yourself. Got it. I wasted too much time comparing myself in my teenage era. Got it. Yeah, so nice. That don't compare yourself is a great piece of advice to your 17-year-old. Nice. Okay, so tell me, now when we think about 2026, you guys are doing amazing jobs. You guys have amazing careers now. What do you think, looking back, and we'll stop looking back and we'll look forward after this, but just one line of what do you think would be the mistake that felt right at that point of time, but it was a mistake which you realize now that was a mistake, probably I should not have done that. What was that, if there is any? If there is anything that you feel from your previous like last so many years of your life, one thing that you wanted to do at that point of time, it felt absolutely bang on right, and then now you think about it and you think that probably that was a mistake or that was a failure. What would, if there is anything, what would that be? So Rohit, anyone? So for me it was play safe. So जब पहले मतलब मैं हमेशा ये सोचता था कि सेफ प्ले करो, ठीक है, अपना एक जॉब लो और आगे बढ़ो, राइट. बट आई थिंक कंपटीशन इतना है इस टाइम पे कि आप अगर सेफ प्ले करते रहोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. करेक्ट. और आगे जाके फिर आपको वो रिग्रेट होगा कि क्या इसमें तो सिर्फ इतना ही करना था मैंने उस टाइम पे और मैं कहाँ से कहाँ होता आज. Got it. हाँ, तो आई थिंक रिस्क लेने चाहिए, है ना. अगर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप छोटे रिस्क लो चाहे बड़े रिस्क लो, पर रिस्क लेते रहो लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे. Got it. हाँ. Okay. So तुमने कहीं पहले पीछे सेफ प्ले करा है? हाँ, लाइक मैं बैंक जॉब, तो Got it. वो काफ़ी सेफ चीज़ थी कि बैंक में नौकरी ले लो, बस पूरी लाइफ उसमें निकाल. Got it. Anyone else? Adding to his point only that I think जो मैंने गलती की थी, it was like following the herd. तो आई थिंक ये जो सारी चीज़ें, बैंक मैनेजर बनना, गवर्नमेंट जॉब करना, ये आई थिंक इसीलिए डिसाइड है, पेरेंट्स भी इसलिए मेरे फोर्स कर रहे थे, बिकॉज इट्स द सेफेस्ट पाथ, राइट. Safest, stable. हाँ, बिकॉज उसमें रिस्क बहुत कम है कि अगर गवर्नमेंट जॉब अगर तुम कर रहे हो, IAS नहीं निकला तो मैं भी सम ग्रुप C-D की जॉब निकाल लोगे, इट इज़ ऑल्सो गुड इनफ कि शादी वादी हो जाएगी, स्टेबल जॉब हो जाएगी, पूरी उम्र उसमें निकाल लो, रिटायरमेंट पे घर बना लो. सो इट वॉज दैट मेंटेलिटी बिकॉज उसमें रिस्क बहुत कम है, राइट. तो आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग द हर्ट कि जो चीज़ अच्छी लग रही है उसमें घुस गया, कि पहले गवर्नमेंट जॉब करने लग गया, फिर वेटनरी वाले में अगर 100% प्लेसमेंट हो तो उधर चला गया. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी करी, बट आई थिंक आई गोट समवेयर व्हेन आई लाइक डिसओबेड द हर्ट, कि उससे थोड़ा निकल के कि वहाँ पे कोई ऐसे किसी, जब मैंने मसाई भी ज्वाइन किया, पीपल वर सेइंग कि नहीं ऐसे स्कूल डेली खुलते हैं, डेली बंद होते हैं. आई वाज लाइक कि दिस इज समथिंग डिफरेंट. ओ फर्स्ट मोस्ट कि आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग, सो आई एम नॉट रिलायबल कि अगर जॉब नहीं लगी तो मुझे पे करना है, ऑल दैट. सो आई थिंक दिस वाज समथिंग स्टैंडिंग आउट, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट मेड मी दैट आई एम टुडे. सो नॉट प्लेइंग सेफ एंड नॉट फॉलोइंग द हर्ड इज आई थिंक. Okay. Anyone else? I want to pitch in. So, from my own life, don't follow the other people. What other people are doing. If somebody has gone through Masai, okay, I take this example. Somebody has gone through Masai and they have done something, some routine, what they have followed, and it's actually worked for them. Doesn't mean I have to do the same. Just like I told you,
पहले वो एक एरा था जिसमें Stop comparing. शोइंग मी Yeah. ये रास्ते पे चले जाओ तुम्हें मिल जाएगा, उसको मिला, नॉट श्योर मुझे भी मिलेगा, Correct. हो सकता है मेरा वे कुछ और हो, रीचिंग ओवर दैट पॉइंट। सो डोंट टेक सजेशंस, डोंट फॉलो ब्लाइंडली। Correct. दैट्स समथिंग व्हिच आई यूज्ड टू थिंक विल वर्क फॉर मी, कि भाई कोई और RS अग्रवाल पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ूंगा तो मेरे भी 90 एट द एंड, यू नॉट श्योर, यू रीड सम अदर बुक, maybe you can understand some other language, some other solution. Got it. It's all about how much you're, it's up to you कि आप अपने लाइफ का एक्सेस दूसरे के सजेशन पे कितना अलाउ कर रहे हैं। That's it. Got it. Don't follow blindly. Awesome. सही है। तो AI तो सुन ही रहे हो चारों तरफ, है ना, AI तो चल ही रहा है, एंड कितना सही है कितना गलत है, क्या है क्या नहीं है, एक बार थोड़ा सा बताओ, सिंस यू गाइज आर नाउ सीनियर developers and leading the teams and everything is happening. What do you think? What is happening from AI perspective in different domains, at least in software domains and around that? And what's the future look like for, like, if you have to basically, if someone at your age right now, or someone who is younger but want to basically look at you for advice from next 5-year perspective, at least AI या फिर बाकी सब चीज़ों के बारे में, तो what do you guys want to basically suggest? So right now people think AI is replacing, AI is taking jobs and everything. People are not thinking like how can I leverage it and make my work faster. But People do you are not. think, so I'll be slightly harsher over here because I want to basically understand when people think about leveraging AI, they think about copy pasting everything blindly, correct? So what do you mean by leveraging AI? When you think about leveraging AI, what do you mean by that? Let's say like small tasks, like let's say just writing the small codes. Let's say even if you have the code, instead of you checking it, you can just leverage AI there. Got Things it. like that, like very small things Got it. where you can just make your own work. What faster. about next 4-5 years? So I'll say AI is something like for me, if right now if someone wants to like go into the AI and everything, I'll say find something where AI is there but it is not able to, it's not like a 100% solution. Okay. But let's don't say you think it will become a 100% solution in next 5 years? no, right now in the industry I'm working on, Okay. there was a fixed workflow, there was a fixed pipeline for the film industry. But the moment AI came there, the whole pipeline changed. Okay. So right now people have like a lot of scope there to figure out things there. Got Mostly for the people who are working in research, it. Got it. they have like a lot of things to do there. And definitely it's not replacing everything, it's just making things faster. At the end of the day, it's just the producer whose creativity is there. So AI can't take the creativity cause it's Okay. just us which have to take. Got it. So you'll say that in next 5 years also, human will be basically deciding authority in terms of creativity, but some of the redundant tasks and other things will be automated through AI. Probably. That's what you're trying to say? Okay. Okay. Got it. Awesome. Yeah, Rohit, what do you think? Walmart में क्या scene है? वॉलमार्ट में AI बहुत यूज़ हो रहा है, लाइक हमारा 95% ऑफ द कोड AI लिख रहा है इस टाइम पे। Got it. मैं एक्चुअली इनकी बात को काउंटर करूँगा उस चीज़ में। मुझे लग रहा है कि आफ्टर 5 years जो हम अभी काम कर रहे हैं वो AI ही कर रहा होगा। Okay. हाँ, क्योंकि अभी AI चीप नहीं है, वो हमें चीप मिल रहा है क्योंकि वो खुद ट्रेन हो रहा है इसलिए। Correct. हाँ राइट, तो वो ऐसा ट्रेन हो रहा है कि वो हमको रिप्लेस कर पाए। राइट, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं, हर जगह पे AI आ गया। राइट, अभी मेरा एक फ्रेंड अभी डॉक्टर के गया था, सो डॉक्टर ने उससे परमिशन मांगी कि हम जो भी अभी यहाँ पे बात करेंगे वो मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो AI के पास जाएगा। ठीक है, और जितने भी इनफैक्ट जो कुक्स है अभी इस टाइम पे लोग घर में कुक कर रहे हैं, उन सबको एक कैमरा दिया गया है यहाँ लगा के। जो भी वो कुक कर रहे हैं ना, वो सबको रिकॉर्ड हो रहा है, AI को फीड हो रहा है। ठीक है, तो ये तो छोटी छोटी जॉब्स हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो हम कर वही रहे हैं। आई थिंक सभी यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो 90% कोड AI से लिख रहे हो। Correct. ठीक है, तो AI एक्चुअली AI हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं इस टाइम पे। Got it. So, what do you think? Like in next 5 years, people those who are right now thinking about, people those who are coming out as software engineer from colleges, people those who are thinking about future in software engineering, what do they need to basically do right now? तो उन्हें अभी तो जो AI कर रहा है उसके साथ साथ ही चलना है। ठीक है, बट जहाँ जहाँ पे AI जा रहा है ना, जहाँ जहाँ पे AI काम आपका रिप्लेस कर दे रहा है, तो आप उससे एक स्टेप आगे रहना होगा।
कि आप अब क्या कर सकते, ए से आप क्या करवा सकते हो। अगर आपको पता है कि ए से आप क्या करवा सकते हो तो आप आगे बढ़। बट मुझे ऐसा लगता है, अगेन वील गो डीपर इनटू दिस, बट लेट्स हियर व्हाट गुरमीत वांट्स टू से। या सो आई थिंक AI का अभी मैं भी यही सब यूज़ कर रहा हूँ, लाइक माई फर्म इज़ ऑल्सो पुशिंग कि जितना हो सके AI से कोड करवाओ। विद रिगार्ड्स टू जॉब आई वुड से कि अभी आई थिंक आई एम सीइंग इन माई फर्म कि काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मर्ज हो रही हैं। अच्छा, राइट, लाइक अभी हमारे पास जो भी QS थे, टेस्टर्स थे, दे वर आस्क्ड टू लर्न डेवलपमेंट। ऐसे डेवलपर्स को बताएगा कि भाई टेस्टिंग वगैरह सीखना शुरू करो। वाई सो? बिकॉज अभी हमारा काम काफ़ी ईजी हो गया, राइट। आर लॉट ऑफ एफर्ट वाज गोइंग इनटू कोडिंग, कि हमारा लाइक 60-70% कोडिंग में जाता था, बाकी सब फीचर बनाने में, कोऑर्डिनेशन में बाकी सब में जाता था। नाउ कोडिंग हैज़ बिकम लाइक 10-15% ऑफ द टाइम, राइट। तो बाकी फ्री टाइम में कंपनी है तो नहीं बोलेगी कि बैठी रहो, दे नो लाइक कि हमारा काम कम हुआ है। सो दे आर सेइंग कि हमारी हायरिंग कम हो जाए सो दैट यू कैन लर्न QA वाला जॉब भी तुम कर लो। डेवलपमेंट से पहले का जो फीचर है लाइक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ऑल ऑफ दैट, तो वो सब आएगा। वन जॉब दैट आई एम सीइंग कमिंग इज प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, कि शुरू से एंड तक एक प्रोडक्ट को पूरा बनाना, फ्रॉम राइटिंग द PID टू डेवलपिंग इट एंड देन अगेन डेवलपिंग द न्यू PIDs एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब अभी मैं देख रहा हूँ। बट AI ऑब्वियसली इज स्केरी, कि अभी जैसे रोहित ने बोला कि वो हमसे ही सीख के हमारा पूरा कोड लिख दे रहा है। बट आई डोंट थिंक जॉब्स विल लाइक डू नॉट एग्जिस्ट वाला कोई सीन होगा, बिकॉज हमने पहले भी ये देखा है कि जब शुरू में HTML CSS चलता था, राइट, फिर जब React आया लोगों को लगा HTML CSS वालों की जॉब गई, बट दे लेवरेज इट, कि जिनको CSS अच्छा आता था वो सब अच्छा आता, दे वर ऑल्सो गुड इन React, राइट। तो अगर मुझे अभी कोडिंग अच्छा आता है, आई कैन नो कि मेरा AI क्या कोड कर रहा है, आई कैन असेस इट वेरी वेल एंड आई कैन लाइक ask it to deliver it well, right? If you see a coder जो अपनी कोडिंग में बहुत अच्छा है, it can use AI in a better way than a coder जो सिर्फ prompts पे काम करता है। Correct. तो I would say कि go deeper, कि you should know कि अगर AI ने भी कोड लिखा है, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कोड लिखा है AI ने। You should know its in and out. I think then only you can sustain a job. Also अभी AI को देख के पता है, because it's fast paced. अभी थोड़े टाइम पहले जो फीचर आया है AI का, वो हमने यूज़ करना शुरू किया, फिर जैसे हम यूज़ कर रहे थे उसके लिए एक और AI का फीचर आ गया। सो बहुत फास्ट पेस है कि कुछ नहीं पता चल रहा है कि जो भी हम काम AI से करवाने जा रहे हैं वो AI थोड़े टाइम में खुद ही कर दे रहा है। Right? तो काफ़ी चेंज हो रहा है। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या AI जॉब्स निकलेंगे आगे जाके, बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है एंड यू नो हाउ टू यूज AI, you will adapt to it. Got it. But Gurmeet, brilliant answer on that front कि amalgamation of actually task बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर job roles काफ़ी ज़्यादा होना start हो गया। मतलब एक developer से expectation from being understanding of a bit of design, understanding a bit of product management, understanding a bit of programming, understanding a bit of QA is something which is now a new job role which people are actually looking for. At least some of the companies that I know are looking for that. If you want to basically work over here as software engineer, you can't just be programmer alone. You should have that sort of a holistic idea, and that's the same thing with product managers also. Like people are seeing that you need to know, you need to understand how program works, how programming works actually. You need to understand a bit of design. So it's an amalgamation of skills. That is something which I'm actually seeing and hearing also, and that is what you just mentioned. Chabi, what do you think? Adding to his point, like कभी भी AI से जो हम कोड लिखा रहे हैं, that was not totally correct. As like मैं आपको एक live example देती हूँ. There is one API, और I have to apply one filter. Like but जब मैंने AI को बोला कि ऐसा ऐसा कर दो, apply this filter, तो उसने क्या किया, जो API से मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था, उसमें फ्रंट एंड में दिखाने के लिए उसने वो रिस्पॉन्स चेंज करके मुझे दिखा दिया। मुझे लगा कि ये करेक्ट है, सही चल रहा है। पर अगर मैं किसी एक ह्यूमन को बोलती वो चीज़, किसी अपने, या फिर मैं खुद से वो सॉल्व करती, तो मैं क्या करती, API में लॉजिक लगाती, उसमें एक और फिल्टर ऐड करती, और फिर मुझे एग्जैक्टली पता चलता कि मुझे लॉजिक कहाँ पर लगाना है, API में लगाना है या फिर फ्रंट एंड में लगाना है। बट अगर जब हम AI से कुछ भी बोलते हैं तो वो बस हमें ये करके देता है कि हाँ तुम्हारा दिख रहा है यहाँ पे सही चलेगा। पर अगर हमने उसे चेक नहीं किया, हमने उसे दोबारा रीचेक नहीं किया कोड को, या फिर कुछ भी नहीं किया, हम उसको एक फाइल में बोलेंगे वो 4 फाइल में चेंज कर देगा। तो जब भी हम AI से कोड लिखवा रहे हैं तो हमें उसको हमेशा रीचेक करना है, और अभी के टाइम पे हमें सब कुछ आना चाहिए। व्हेन आई वाज लर्निंग फ्रंट एंड, हमारा जॉब होता था बस फ्रंट एंड का जॉब करना, बट अभी के टाइम पे यू शुड नो फ्रंट एंड, बैक एंड, डिप्लॉयमेंट, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम कुछ भी AI से बनाते हैं तो हमें पता है कि वो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक होगा, तो हमें उसको सॉफ्टवेयर को अपने हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उसमें, और जैसे साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें कैसे लगा सकते हैं कि उसमें अटैक ना हो, क्योंकि जब AI ही बना रहा है और दूसरा AI उस पर अटैक करेगा
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब हम AI से बनाते हैं तो वो प्रो में छूट जाती हैं। Got it. Got it. तो हमें मोस्टली उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमें सारी लैंग्वेजेस का बेसिक आना चाहिए। ऐसे लाइक तुम पाइथन भी सीख लो, जावा भी सीख लो, क्योंकि कोड तो AI लिख देगा पर उसको समझ में भी तो हमें आना चाहिए ना, तो कुछ भी लिख के चला जाएगा। Correct. तो समझ में आना सब लोग ही यही बोल रहे हैं consistently that you need to basically understand what you're writing. Okay. Mayuri, anything different from this? लिटिल डिफरेंट कि एज रोहित टोल्ड कि हमें डीप में नहीं जाना है, बट आई हैव लिटिल डिफरेंट इनटेक इन दैट कि एज AI ही सब कुछ कर रहा है तो हमें और डीप में जाना चाहिए, To क्योंकि understand where सिस्टम it's या going. बिकॉज सिस्टम एट द एंड हमने लिखा है, हमको समझ आती है कौन सा कहाँ से लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ ऑल्सो फलेंको में बहुत सारे सर्विसेज है, लाइक स्टोर फ्रंट के सर्विसेज है, प्लेटफॉर्म के सर्विसेज है। नाउ AI को उतना कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दे, 60 एपोजिटरी तो नहीं दे सकते ना हम। वी आर वर्किंग इन अ समवेयर 1 2 सर्विसेज 3 सर्विस 4 सर्विस, नॉट मोर देन दैट राइट नाउ आई एम सेइंग। तो फिर इन एंड आउट हमको पता है कि कहाँ पे जाके कंज्यूम होगा, कैसे होगा। Got it. तो फिर वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली, देन ओनली वी कैन लेवरेज। सो राइट नाउ ऑल्सो थोड़ा एडिशन टू देम ऑल्सो कि AI जो लिखता है इट्स नॉट ऑलवेज परफेक्ट, इट्स नॉट परफेक्ट एक्चुअली। तो मैंने भी एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क लिखा था फॉर वन ऑफ द माइक्रो सर्विस एंड इट हैज़ डन लाइक बेसिक थिंग। उसने ना काइंड ऑफ प्रॉपर पैकेजेस बनाए कि प्रॉपरली यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है, यहाँ पे लिखना है एज पर हाउ वी आर राइटिंग, कि ओके वी आर थिंकिंग कि इसको एक्सपांड भी करना है बाद में जाके। इन दैट सेंस वी आर राइटिंग। आई नो वी कैन टेल AI बट वो उतना अच्छे से अभी भी रिजल्ट नहीं देता है। Got it. But it is improving, correct? You have seen it Yes, कि in yes. last 3 years it has evolved a lot. Yes. टेक वाले लोगों से मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि टेक वाले people are the final frontier who is the most resistant folks. That यार ये क्योंकि एक भी hallucination is something which basically kill your morale. That यार ये तो काम ही नहीं कर रहा, करेक्ट? और वहाँ से अगर टेक टीम से स्टार्ट होता है तो फिर बाकी सारे लोग जो होते हैं वो लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो टेक टीम का विन होना फ्रॉम अ कॉन्फिडेंस पर्सपेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस, करेक्ट? डू यू एग्री विद मी और नॉट ऑन दिस? या ओके, अरुणव, एनीथिंग? Yeah, more points. Many points out of this. Sorry. How much programming is being done by AI in your laptop? No, so I take most of the control under my hand. Okay. It depends on my deadline. If I get it depends on my deadline. Okay, if I get any feature which is something which is internally we are building, which is not coming from the client, I can buy time from my product managers, from my business people. But I need time to build this. I try to do all my research, architecture on my own. Then I just guide AI to do it. What I am saying, I am a Iron Man, AI is my Jarvis. Jarvis can't take over whatever Iron Man is saying. If Iron Man is saying paint my suit in red color, it has to be red color. That's it. What AI says, I'll do it orange, I'll do it yellow, I don't want it. Okay. Got It depends on the deadline. Yeah. On the high level in the market, a lot of people are scared of AI because they are not ready to adapt the new things. What I see, there is some friction. What people used to do last 3 years back or 10 years back, now the kind of environment and the culture they are getting right now and the tools they are getting, they are not ready to adapt so fast. Point is, consider the software engineer 10 years back, how fast he used to do an Udemy course or upskilling himself in a quarter should be faster now. Because now whatever juniors and freshers are joining, they are faster than you used to be 20 years or 10 years back when you started your career. Correct. With AI, at day one of your job and you or your private project, you are the manager. You are guiding someone to do something. It's not like you are an intern first, somebody is telling you what to do and you are learning very slow. It should be fast. So people are scared because they are not ready to adapt the new things. Now, if you are adapting new things, meaning you are jumping into a new shoe, just accept it, that shoe is made of AI. You are jumping into it. Correct. So you should be one step ahead of AI. Okay, it's not about the core what AI is writing. It's not about the language. Being a person, being a tech guy, if as a tech perspective, if I'm dealing with an AI company and AI product, I should know how to build it. I should know how to test it. I should know what is the business requirement. I should know how to sell it. I should know who are the end users. Then only I'll be capable enough to drive the AI according to what I want. Got it. If you go
So that agile method has changed drastically. Now, after 5 years, why AI has came so strong in last 5 years? Because we are the one who are training it. We have bought tools. AI know how Arunabh writes code. AI know how Rohit writes code. Our inputs, taking our codes, AI is helping someone else. That for this problem, this is a solution which is already present. Yeah, you are a data bank for them. Huh. Yeah. After 5 years, I agree, jobs will reduce, but new jobs will create. Considering AI into picture, the biggest issue with companies are handling the cost for it. So there are AI generalists, there are no DevOps, there are LLM ops, there are AI ops. Because now we have, being a tech guy, I have to suggest my company a new model for a particular task. And it's not about the model, it's about the cost associated with. What are the limitations? What are the fallback for it? So now, considering human with respect to AI, we are the fallback for the company if AI fails. That's what happens with our airplanes. Airplane also already has autopilots, but still pilots are there. What if something fails? Correct. Human decisions should be there. That's what human versus AI we are dealing with. Got They it. are the cushion for the company. Got it. If AI doesn't work, our brain should be trained enough Yeah. to handle any scenarios. Got it. And with AI, new jobs will be handling the cost. What I see in my company right now. Cost will come down, correct? Infra is actually becoming better and better, and the Yeah, tech but infra. When AWS and Azure was there, we could have done the same architecture at a smaller cost and with limitations. It's very hard to control AI. करेक्ट टोकन सारे के सारे कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई भी लगा देता है अभी. We recently a company in US got some 8,000 crores cloud bill because they did not put any limitation on employee token level. They used it like crazy. The company got shut down. Got it. Interesting. So एक अच्छी चीज जो तुमने बोली अरुणाब, उससे मुझे मतलब दिस इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू. So one thing which I keep hearing from all the student testimonials who comes out from Masai is that Masai taught you to enter into different unknown territories, made you basically learn those things in a not in a different way, but something which is like, so you need to basically Masai taught you on in terms of how to be agile, how to adapt new things. This is a testimonial that I basically see it from most of the people those who come out. I never agreed with it. Okay? क्योंकि जब भी मैं ये टेस्टिमोनियल देखता हूँ, मुझे कभी भी नहीं लगता है कि बसाई आपको 6 महीने में ये सिखा सकती है कि कैसे नई चीज़ को सीखना है. करेक्ट? वो तो इन लोगों का कहीं माइंडसेट एग्जिस्ट करता है. ठीक है? वो सब लोगों के अंदर वो माइंडसेट एग्जिस्ट नहीं करता है, इन लोगों में वो माइंडसेट एग्जिस्ट करता है. इनको ऐसा लग रहा है कि मसाई सिखा रहा है, एक्चुअली ये लोग खुद ही सीखते जा रहे हैं. दिस इज व्हाट आई बिलीव इन. ओके? I don't think that anyone can teach you in 6 months how to basically make your brain learn to be agile, to be adaptable until unless you don't want it. It is not trainable skill. Do you agree with me or not? Not entirely actually. See, I'll tell you कि जब मैं पहले जॉब कर रहा था मसाई के all that, I was too hard on myself कि नहीं change नहीं करना है, not adaptable to change. I think one thing Masai has taught or like generated in me is that कि you have to change, right? Because you, so Masai is like But ऐसे तो और लोग बोलते रहते हैं ना, जैसे घर पे भी बचपन से बोलते रहते हैं, कुछ लोगों को, हर किसी को बोलते रहता है ना लोग, बाकी आपको चेंज होने की जरूरत है, आप ऐसा कर रहे हो जो गलत कर रहे हो. But not everyone basically change until unless you don't see a merit in it. Your mind don't see कि यार मेरे आसपास वाले जो लोग हैं वो लोगों में चेंज आ रहा है, अगर इसको फॉलो करूंगा तो मेरे को खुद ही करना है. मतलब ऐसा है कि गिव यू डायरेक्शन और एक्सपोजर, बट यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ. डोंट यू थिंक? But I think pressure भी एक, there is bad pressure and good pressure, right? But मसाई में ये होता है ना कि डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड देन मंडे को आपका यूनिट टेस्ट होगा, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. आप ये नहीं कर सकते कि नहीं अभी वाला स्किप कर दूंगा. लाइक इन कॉलेजेस ऑल्सो दे डू दैट कि आज की क्लास नहीं लगाई, कल हो जाएगा, परसों जाएगा. एवरीवन इन कॉलेज देयर इज दिस सिस्टम इन इंडिया कि हम एग्जाम के एक रात पहले पढ़ेंगे. गॉट इट. In Masai, you can't do that. You have to submit the assignment. You have to be present in the class 90% of the time. गॉट इट. Right? तो हम emergencies को भी ऐसे बाइसेक्ट करते हैं कि बहुत बड़ी emergency है, छोटी emergency है, skip कर सकते हैं अभी all that. तो I remember in
मसाई के टाइम पे आई थिंक फॉर लाइक 8-9 मंथ जब तक मेरा कोर्स चला, मैं शायद किसी शादी पे भी, किसी फंक्शन में कभी नहीं गया, राइट। ऐसा कभी नहीं हुआ था इन लाइक जब भी मैं कॉलेज कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आई वाज skipping फंक्शन बिकॉज आई लाइक टू वर्क। बट यहाँ पे आके आई वाज able to sit consistently for 9 hours because I knew कि अगर मैं नहीं बैठा I am missing out on something, बहुत पीछे रह जाऊंगा, शायद 2-3 दिन की क्लासेस ही मेरे से बहुत आगे निकल जाएंगी। So I think that was a good pressure जिसने मुझे इतना वो बना दिया that I am able to sit, right? I think उस चीज़ ने हमें जनरेट किया ये एजाइल स्ट्रक्चर के लिए भी। I didn't know those words back then, एजाइल क्या होता है, कानमन क्या होता है and all that, but I think that was एजाइल एजाइल थिंग जिसमें हमको इंटीग्रेट किया जा रहा था कि ओके यू आर गिवन टास्क डेली, यू हैव टू सबमिट बाय देन, एंड वही चीज़ आगे हमने कॉर्पोरेट्स में अप्लाई करी। सो इट्स नॉट दैट कि मसाई हमें ये सब सिखा रहा था, बट ये सिस्टम ही ऐसा था जो कि कॉर्पोरेट से बहुत मिलता जुलता था, जिसको लेके आगे हम अच्छे से अडेप्ट कर। गॉट इट, ओके, ऑसम। I have one thing. So I think like one of the assignment immediately after my Masai for one of the interviews, like there was something new there, and I was able, like we did 2-3 hours for the assignment time, like it was interview thing, and I was able to do it. And I think out of 3-4 candidates, only I was the one who did it. Like this was immediately after Masai, and like during Masai period, some of the assignment, let's say, were similar to what was taught, but there was some things that you had to figure out. So figure out. Like I think that did help, like the Masai structure for me. Got it. So मतलब ये so now whatever I am hearing from Gurmeet Ahmed is that कि ये ट्रेनेबल चीज़ हो सकती है अगर आप रिपीटेड तरीके से करो। मतलब अगर आप नई टेरिटरीज कंटिन्यूसली किसी बच्चे को देते रहो तो वो धीरे धीरे अडेप्ट करना स्टार्ट कर देता है। इज इट राइट? यस, एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी एबल टू अडेप्ट टू इट। तो अभी आज के जो बच्चे एग्जिस्ट करते हैं उन लोगों के लिए ये कैसे सिस्टम क्रिएट करा जाए? जो अभी 2026 में ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे, दे हैव गॉन थ्रू द सेम स्ट्रक्चर, बट चीज़ें आउटसाइड इज चेंजिंग एट अ रैपिड पेस। तुम लोग तो अभी किसी और पेस पे बात कर रहे हो कि हर दूसरे दिन कोई नया टूल आ रहा है एंड यू गाइस आर बेसिकली एक्सप्लोरिंग इट। दोस स्टूडेंट्स आर स्टिल हैव गॉन थ्रू द सेम ओल्ड एज सिस्टम्स। अभी उनको अगर कुछ चेंज करना है तो कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उनको? अभी आई थिंक कैंसल द नॉइज फर्स्ट, क्योंकि अभी हर एक चीज़ में 10 AI टूल्स हैं, राइट? इफ़ यू लुक इनटू कोडिंग के लिए यू हैव क्लोड, कर्सर, कोडेक्स, कोपायलट, एवरीथिंग इज देयर, राइट? बहुत ज़्यादा नॉइज है। आई थिंक यू नीड टू फिल्टर आउट फर्स्ट कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देन आई थिंक यू कैन लर्न दैट, एंड डोंट थिंक कि वट एवर यू आर लर्निंग इज गोना स्टे। लाइक जब AI आया था एंड AI एजेंट्स बिकेम अ थिंग, राइट? Then I was learning LangChain because it was in so much trend back then कि LangChain से you can connect different models और वो सब करके you can build a whole flow. But then Claude started doing it. So whatever knowledge I have gained, I had to like छोड़ना पड़ा उस सबको, right? So you need to know what should be like beneficial for you, and you should be ready to leave it when there is a replacement. Got it. So I think that is the way to go. इसमें ऐड करूँगा कि जो नॉइस कैंसलेशन का वो बोल रहा है, आई थिंक इस टाइम पे कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है नेट पे, रील्स है, शॉर्ट्स है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, यूट्यूब वीडियोस है। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो रेगुलर देखते रहते हैं और उनको लगता है कि उनको चीज़ें आ रही है उससे, कि उनको समझ आ रहा है। बट वही है कि हर एक जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसका पर्सपेक्टिव अलग होता है अपना, वो कुछ अलग चीज़ सिखाता है, राइट? तो वो चीज़ें थोड़ी कम करें और एक स्किल की तरफ ही जाए कि ये स्किल मुझे सीखना है। एंड जैसे बोलो कि हाँ, वो जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट स्किल है, बट सीखना स्टार्ट करो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे। सीखने का प्रोसेस वही है, सेम है, पुराना ही, जैसे पहले सीखते थे तुम लोग वैसे ही है या कुछ फास्ट हुआ? सीखने को बहुत फास्ट हुआ है, बहुत चीज़ें, क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत जल्दी क्लियर हो रहे हैं अभी, क्योंकि AI है आपके पास। तो आपकी लेवरेज काफी अच्छे तरीके से। यस, हाँ। अहमद, you wanted to say something? Got it. बट आई थिंक इसका एक नुकसान ये है कि रिसर्च काफ़ी कम हो गई है। सो जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है उसका आंसर तुम्हारे सामने है। सो यू डोंट गो इनटू दैट। आई डोंट थिंक कि आजकल कोई तीसरे चौथे पेज पे जाता है गूगल के, राइट? बिकॉज ChatGPT है, पहली बार में आंसर तुम्हारे सामने है। स्टैक ओवरफ्लो का लाइक ट्रैफिक हैज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, करेक्ट? तो आई थिंक वो एक चीज़ कम हो गई है, बिकॉज रिसर्च में हमें एक्स्ट्रा 3 टॉपिक्स पता चल जाते थे कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट का एक मेथड देखने गया हूँ स्टैक ओवरफ्लो पे, मुझे 3 सजेशन आ जाते थे, इंटरेस्टिंग लग रहा तो मैं खोल के देख लेता था। GPT तुम्हें वही बताएगा जो तुम्हें जानना है। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सेटबैक। गॉट इट। तो मसाई के बारे में लास्ट एक वर्ड अगर तुम्हारे दिमाग में आता है, एक वर्ड या एक सेंटेंस अगर तुम्हारे दिमाग में आता है, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वाज मसाई फॉर यू गाइस
in one word, one sentence, whatever you feel. We can start with anyone. कहीं से भी start कर सकते हो अरुण आप. Okay, Masai gave me the biggest lesson of life that if you know everything in the room, you're in the wrong room. Move out of your comfort zone whenever you get chance. Awesome. मेरे लिए तो इतना ही है. I'm still living it. Got it. So before Masai, I haven't met people from around the world. तो Masai gave me the opportunity to talk with the people जो हमारे बैच के थे, कोई कहाँ से है, another background and everything. So I think I got that perspectives, different perspective, exposure you can say, yes. So that is Masai for me. Got it. एंड फॉर मी इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट. अगर वो नहीं होता तो अभी मैं बीटेक करके किसी कंपनी में कुछ भी कर रही होती. एंड वन थिंग आई वांट टू ऐड, कोई भी कॉलेज हमें ये नहीं सिखाता कि हम कैमरे में कौन से एंगल में बैठना है. हमारे CSBT क्लास में हमें ये भी सिखाते थे कि तुम्हारा लाइट कहाँ पे लगा होना चाहिए और तुम्हारे कैमरे का एंगल कहाँ पे होना चाहिए. अगर वो जो हमारी CSBT की टीचर थी वो हमें ये भी बताती थी कि अगर तुम्हारे पास प्रॉपर लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा बल्ब आगे लगाओ ताकि वो तुम्हारे फेस पे लाइट आए. तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी कॉलेज, कोई भी टीचर, कोई भी हमें ये सिखाता है कि तुम्हें इंटरव्यू में बैठना कैसे है, तुम्हें बोलना कैसे है, पहनना क्या है उस टाइम पे, बाल कैसे बनाने हैं, कोई भी नहीं सिखाता. तो दैट वाज मसाई टीचिंग. Got it. Awesome. Who was the teacher if you remember the name? Isha थी क्या? Yeah, Urmil. Yeah, so I think Masai told me to dream big and be consistent. तो as I told, वो 40,000 की सैलरी बहुत बड़ी लग रही थी, बट फर्स्ट जॉब उससे ज़्यादा थी. तो आई थिंक ये दिखाना कि शुरू में जब वो हुआ कि 5 LPA से ऊपर लगा तो यू हैव टू पे द ISA, तो 5 LPA बहुत बड़ा लग रहा था कि ये होगा तो यार दिस इज़ तो लाइक फैमिली का ड्रीम कि इतना होगा तो और किसी को काम करने की ज़रूरत ही नहीं है. बट फिर जैसे आई थिंक प्लेसमेंट भी नहीं लगी थी, इट वाज लाइक 6-7 वीक मंथ ऑफ मसाई, और तब लगा यार 5 LPA तो छोटा नहीं है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा लगना चाहिए. Good. So that's what I think I get it from, कि dream big and be consistent about it, that's how you can achieve it. Good. For me it's transformation. So जब मैंने मसाई ज्वाइन किया तो वो माइंडसेट था मेरा कि मुझे चेंज लाना है अपनी लाइफ में, बट उसमें जो मेरे को ट्रांसफॉर्म किया मसाई ने, बहुत चीज़ें सीखी मसाई से, सिर्फ कोडिंग नहीं सीखी, और भी बहुत चीज़ें थी कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ना, वो लर्न अनलर्न एंड रीलर्न वाला चीज़ वो मैंने मसाई में सीखी है. Got it. Ahmed? In Masai, for like in one word for me would be launchpad. Like since Masai, my career has been going well, and like some of the things like learning things on the fly, like when like Albert used to solve like life problem, he would show it like how I am thinking. I even don't understand that entire thing, but still I can play with and figure out. Those things I would give credit to Masai for that. Awesome. Yeah, for me, Masai is if you want to learn something in very less time, you can, as long as you really want to do it. You really want to do it. And another thing is like we never had mock interviews in universities. Masai is something which did it for us. Got it. Got it. Yeah, I think mock interview is something which is very, very important, no? Yeah. From a job perspective, cracking a job perspective. Okay, awesome. So one last closing thought on we have completed 7 years, guys. Abhi 10 June ko we are going to complete 7 years. Entering into our 8th. But any closing thought on Masai life in general, anything, any closing thought, and then we'll wrap it up. Start. So look, कौन सोच रहे? नहीं, start बीच में से करूँगा मैं, उर्मित से start करूँगा. It's good only. I think Masai has been adapting to it, and I think I have suggested more people in Masai. I have suggested my peers, my friends, my cousins, all of them. Some have learned from Masai, some couldn't complete it. But one thing I like about Masai is that they are adapting. Colleges don't teach this. They don't update their syllabus as was mentioned earlier. So I think Masai is good in that. So I think keeping it up, so that will be good. Awesome. Will? आई थिंक कि अपने आप को अपस्किल करने से, कुछ नया स्किल सीखने से हेजिटेट मत करो, ठीक है. बड़ा एम करो, बड़े लोगों को देखो कि क्या डिफरेंट कर रहे हो तुमसे, जो आज वहाँ पोजीशन पे है, और तुम वहीं खुद को देखो. ये माइंडसेट वैसा बनाओ. And sustainable. सस्टेनेबल, यस. हाँ. Got it. Ahmed? For Masai, I would say the like 6th month or 8th month giving, like those days are kind of gone. Like people want things done quickly, so Masai should integrate itself with like existing education, like 3 year, 4 year, and teach them from day one, like gradually or whatever. But like expecting people to give their 6-8 months
seems like those days are going away. Got it. Okay. Awesome. Right now, good thing about Masai is like it's adapting to new things pretty fast as compared to, let's say, university. Got it. So it's easy for Masai as well to whatever the job requirement is, we'll just adapt to it. Got it. Awesome. Mayuri, Chavi. सो मसाई टीचिंग फिर बेसिकली उसके जब तक मैं मसाई में थी किसी भी हरमिशद की वो किसी भी शादी में किसी भी फंक्शन में नहीं गया तो इट वाज सेम फॉर मी। जब तक मैं मसाई में थी पूरे 8 मंथ तक मैं घर भी नहीं गई थी, उस डे भी नहीं गई थी एंड माई होम टाउन में बसती, तो मैं घर भी नहीं जाती थी। सम सैटरडे संडे मंडे को तो हमारा टेस्ट होता था मॉर्निंग में, तो सैटरडे को जाके और संडे की मॉर्निंग ही वापस आ जाते थे। तो मसाई ने वो डिसिप्लिन दिखाया है कि भाई तुम्हें करना है, अभी ही करना है और 6 और 8 मंथ में ही ख़त्म करके जॉब लेनी है। Got it. Awesome. Mayuri. सो ओवरऑल मसाई में मैं जितना भी मतलब मसाई में जब थी देयर वर 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु वर एक्चुअली पुटिंग एफर्ट्स कि घर जाना छोड़ दिया, शादी में जाना छोड़ दिया एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग वेल इन लाइफ। एंड देयर आर स्टूडेंट्स जो प्लेगरिज्म करते थे या फिर कॉलेज की तरह लेते थे काइंड ऑफ दैट। तो फिर एनी स्टूडेंट हु इज़ वॉचिंग अस कि इफ़ यू आर कमिंग टू मसाई, बी रेडी to sacrifice all the things for this particular months so that your next years will be great and Got it. Yeah. Next years will be fruitful. Yes. Final. Masai, and I want to say keep going on. There are lack of students in India which need Masai. The guidance, the curriculum, the lack of it. As a student, when I go back, these are the things which I was lacking with Masai gave me as a black. And ending up at a very good note. So Masai just 7 years, we can go 70 more. Awesome. Thank you so much, guys. Thank you so much. I hope you guys have enjoyed it. I have thoroughly enjoyed the conversation. It was. We should do it more often. Like I think. Start the podcast channel. Start a podcast channel. This is the first time I am doing podcast, so I was more nervous than you guys. What should I ask them? So, but yeah, I think this is something which is interesting. Thank you so much for taking out time today. And सब लोग बहुत दूर से आए हैं, रोहित तो मैसूर से आया है, तो but thank you so much, guys. I hope it was fun for all of you guys. yes. Okay, awesome. Thank you so much, guys. Bye-bye.